To tell us more about these opportunities, we have with us Mr. Maithili Sharan Gupta sir, IPS MP. He is a mechanical engineer. He has completed his MTech in Industrial Engineering, MBA with 3 specializations, that is Human Resource Management, Finance and Marketing. He has also completed his diploma in human rights and also in disaster management. He has received President Medal for Gallantry, President Medal for Distinguished Service, Meritorious Service, Parakram Medal, Internal Security Medal of Naxal Area 6. His special work is Command Post System with spectrum of technologies to handle all kind of operations, especially in terrorism-affected areas of Kashmir. His project under process are automated crime investigation support system with capability to detect all the offences across the country, state command response monitoring and resolution system, and automated objective digital feed-based performance appraisal to channelize, bring objectivity and energy in core professional areas. We are indeed honored to have you, sir. Now I request our principal, Dr. P.B. Mane, sir, to welcome the guest. Thank you, Tejasri. Gupta sir, once again, a warm welcome to this webinar. Indeed, it was a pleasure talking to you just 2 days back, and really, I, along with my team, were amazed. First of all, with the in-depth knowledge which, even though in the police cadre you have about the technicalities, which you would like all of us to know and bring certain innovations in them. So it was indeed great pleasure, and once again a warm welcome. First of all, I would like to take this opportunity to welcome you again on behalf of our management, our Honorable Secretary, Sri Malavi Rajit Chhatrapati, and our other honorable members. Thank you. I would first thank our Smart India Hackathon team who are in the finals, working under your guidance. So your voice is breaking. Yeah. I had a call. Yeah. And because I just want to say that indeed, I would first like to thank our Smart India Hackathon team, because of whom it has become possible today to have an interaction with you, and the opportunities probably the other students may get under your leadership. So just to mention the names of our team, I would like to thank all of them. Shreyash Kambalkar, the team leader. Then we have Vishek Pratap, then Ritik Sharma, Nilay Pandey, Mitali Ragwani, Bob Ali. So these are the students, and I hope all the students who have gathered over here to listen to our honorable speaker. Indeed, all these students are an inspiration for you. And the topic which we have chosen today is, in English, we Sir what said as crime-free India, and it is his vision that he wants to bring innovations into the system, which all of us know as of today. We are really wondering that how things are going to happen. But after listening to his talk 2 days back, we really felt that no, yes, somebody has taken initiative, and yes, surely in the future to come, we have something great to be happening under Sir's leadership. And I hope that the entire face of the police department, not only in Madhya Pradesh, for that matter, all over India, it will be changed. And he has thought of bringing into technology. So this, once again, I would like to thank him. And the most important thing is, I would also like to mention the name of ND Gaikwad, who has been coordinating this event along with his teammates of the entrepreneurship cell, like Kulkarni Madam, Nidhi Madam, Amit Kore, Sabha Madam. So I am also grateful to this entire team, because they are spending a lot of efforts in seeing to it that the students are not only looking for the placement opportunities, but they're also thinking in some things like innovations and maybe startups, and how they can become the future entrepreneurs. So with this, thank you. And once again, welcome, sir. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. मैं आप लोगों से हिंदी की भाषा में बात करूंगा, जिससे कि इस ऑडियो वीडियो का ज्यादा उपयोग
हम जो है लोगों को रीच में कर पाए और लोग जो है साधारण से साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ पाए कि हमारी यात्रा क्या है। पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा कि जो तेजस्वी जी ने कहा है कि these are the opportunity for with the Madhya Pradesh police. So these are the opportunity not with the Madhya Pradesh police, but that this is the opportunity which students would be creating for themselves. बच्चे जो है स्वयं स्टार बनेंगे, वो इतना अच्छा काम करेंगे कि उनका जो वर्क है उससे बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है ना पैदा होंगे, बहुत सारे जो है पेटेंट्स और बहुत सारे आईपीआर जो है वो कंट्री को मिलेंगे और फिर जो है जर्नी स्टार्टअप हो जाएगी और इस जर्नी में सभी को लाभ मिले, धन रूपी गंगा का जो है फायदा सभी को मिले, तो इसमें बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम की बात की गई है। पहले हमको जो एनर्जी मिलती थी वो बहुत सारी वैदिक सोच से मिलती थी, हमें परिवार का जो वैल्यू सिस्टम रहता था उससे हमको सोच मिलती थी, लेकिन चूंकि अब वो चीजें काफी कुछ अर्थयुग में और कलयुग में वो थोड़ी सी रिसीड कर गई हैं, तो अब हमें वो एनर्जी कहीं ना कहीं अर्थ से जो है ना जोड़ने की जरूरत है। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि अब हम फास्ट लाइफ में जी रहे हैं। आप याद करें, और जैसा मैं अपने बचपन की बात करता हूं कि घर में पापड़ बनते थे, घर में अचार बनता था, आज जो है कहीं पे ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब जो है फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, लाइफ फास्ट हो गई है, पति पत्नी दोनों जो है वो व्यवसाय में है या नौकरी कर रहे हैं और उनके पास जो है समय नहीं है कि वो एक होलिस्टिक जीवन और होलिस्टिक चीजों को खुद कर सकें। उनकी डिपेंडेंसी और जो है वो काफी बढ़ गई है। लिहाजा अब समय आ गया है कि हम जो है लोगों को ज्ञान ना बांटें। यदि हम ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोगों को उनको सॉल्यूशन दें और एंड टू एंड सॉल्यूशन दें। यदि हम सॉल्यूशन देंगे तो उसकी ग्राह्यता होगी। मेरा ये मानना है कि अभी जो है जो भारतवर्ष जो उड़ान करने वाला है उसकी एनर्जी जो है वो यूथ में छिपी हुई है। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि एआई जो है एसएसएम जो है वो 53rd जो है ना यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है जिससे कि हम एमओयू करने जा रहे हैं और सभी जगह जो है मैं ये देख रहा हूं कि बच्चे बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अभिषेक जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में थे, ये बात को जो है ना स्वीकार करेंगे कि कई बार हमने जब इनसे इंटरफेस रखा, बच्चों से इंटरफेस किया और उस समय हमने इस बात को अप्रिशिएट किया कि बच्चे बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं और बहुत बड़ा सोच पा रहे हैं। तो अभी जरूरत है कि बच्चे एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट में हो, अच्छे इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। बच्चे जो है देश के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन जो है ना ऑफर करने के लिए स्टार्टअप बनाएं। जो स्टार्टअप की बात मैं कर रहा हूं वो स्टार्टअप आज के जो आप स्टार्टअप देख रहे हैं इससे काफी भिन्न है। आज क्या होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि अच्छा ये कोई समस्या है, इस समस्या के लिए हम एक स्टार्टअप बना देते हैं। अब उसको सोचने का काम मेरा, उसको टेक्नोलॉजी बनाने का काम मेरा, फिर उसके लिए धन इकट्ठा करने का काम मेरा, फिर जो है उसको रीच आउट करके और सक्सेस करने का वो भी काम हमारा। और चीजें इतनी कैपिटल इंटेंसिव हो गई हैं कि स्टेक बहुत बढ़ गए हैं और यही कारण है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है दे आर नॉट सर्वाइविंग। जो स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं वो इसलिए नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं कि उनके कोई कॉन्सेप्शन में प्रॉब्लम थी या उनकी टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम थी।
वो सिर्फ इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, दे आर नॉट पार्ट टू द टू एंड सॉल्यूशन। एक चीज हमको समझना पड़ेगी कि चीजें साइक्लिक हैं, तो साइकिल में जब तक पूरा चीज कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो साइकिल सरवाइव नहीं करेगा। तो यदि हम एंड टू एंड जो है साइक्लिक जो है स्टार्टअप की यदि सोच रखेंगे तो वो म्यूचुअली सपोर्टिव होंगे, और वो म्यूचुअल सपोर्ट जो है सामने वाले जो एंड यूजर है उनको भी एंड टू एंड सपोर्ट जो है ना करेंगे। तो जो अभी अपन जो सोच कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कहा है कि हम जो है ना आम लोगों तक पहुंचेंगे विद ए सिटीजन ऐप, with a volunteer app, observer app and stakeholders app, ये एक चमत्कारी ऐप होगा जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले जो है हमने इसका रखा है समर्थ भारत और अपराध मुक्त भारत, और ये एक यात्रा है और ये एक विजन के तहत यात्रा है। तो सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि 2017 में जो है हम लोग, मैं जो है होम मिनिस्ट्री के पास गया और मैंने कहा कि एज ए डीजी रेलवे हमने बहुत सारा जो है काम किया है रेलवे क्राइम की विवेचना के लिए, और रेल में जो यात्री जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे वो अपनी बात पहुंचाएं, उनकी एफआईआर कैसे लिखी जाए। तो इसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल का जो है ना टीआरपी ऐप मध्य प्रदेश के रेलवे डीजीपी होते हुए भी हमने तैयार किया, और फिर उसमें क्विक इन्वेस्टिगेशन का रिस्पांस टीम बनाया, उनको लैपटॉप से लेके हर चीज से इक्विप किया, उनको पोर्ट्रेट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर जो है ना लोड किया, और एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है ना देने की कोशिश की, जिससे कि ना केवल रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बल्कि इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनली कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस, डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड कन्विक्शन ऑफ क्राइम का जो है होना चाहिए। इस सोच के साथ जो है एक फिर 4 ऐप उसमें और जोड़े गए, जिसमें कि सुपरवाइजरी ऐप, इन्वेस्टिगेटर ऐप, देन रेलवे स्टेक होल्डर एंड फाइनली रेलवे पैसेंजर ऐप। और ये पांचों ऐप को इंटीग्रेट करके इसको इतना पावरफुल बनाया गया है कि आज यह जो है सिस्टम इस बात की काबिलियत रखता है कि जो हवलदार ट्रेन में चल रहा है उसको इतना ज्यादा जो है सपोर्ट देने की स्थिति में है और इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने की स्थिति में है कि एक क्राइम का हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और 120 जो है ना क्राइम डिटेक्ट हो रहे हैं। और ये हम तब कर पाए जब हम अधिकांश प्रक्रियाओं को मैनुअली कर रहे थे। फिर हमने आईआईटी कानपुर को अप्रोच किया और उनके साथ एमओयू किया, एंड देन वी स्टार्टेड ए जर्नी ऑफ ट्रैवलिंग फर्दर, एंड इन दैट जर्नी अब हम जो है 53 यूनिवर्सिटी से जुड़ चुके हैं, 53 यूनिवर्सिटी से जुड़ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीपीआरएनडी के माध्यम से नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया और 2017 से अभी ये नेशनल पुलिस मिशन है। इसके बाद जो है मेरा स्थानांतरण जो है रेलवे से डीजी होमगार्ड का हो गया, और वहां पर जो है हमने कश्मीर के अनुभव को और सब चीजों को समाहित करते हुए एक विजन लेके आए, डिसास्टर रेजिलिएंट मध्य प्रदेश, जिसके लिए एक स्टेट रिस्पांस कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया, जहां पर डिसास्टर होने की संभावना
होना थी, स्पेशली फ्लड रिलेटेड जिसमें मौतें ज्यादा हुआ करती थी, वहां पर डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर बनाए गए और लोकल लोगों को जोड़ा गया, क्योंकि मेरा ये मानना था कि हम कितने भी स्पेशलाइज्ड फोर्स क्यों ना बना लें, क्योंकि हमने एक SDRF करके फोर्स भी मध्य प्रदेश में खड़ी की, स्टेट इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। लेकिन मेरा ये मानना था कि जब तक ये फोर्स वहां तक पहुंचेगी तब तक गोल्डन आवर खत्म हो जाएगा और संभवतः हम लोगों को नहीं बचा पाएंगे। इसको कई प्रेजेंटेशन इसमें NDMA को किए गए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को किए गए, उन्होंने इस बात को काफी सराहा और उन्होंने बहुत सारी चीजें अब नेशनल लेवल पे भी इसकी अडॉप्ट की। तब तक मेरा वहां से स्थानांतरण जो है, मैं DG पुलिस रिफॉर्म बन गया। तो मुझे एक बड़ा कैनवास मिला और फिर लोगों ने मुझसे कहा कि साहब अभी तक आपने रेलवे के बारे में सोचा है, तो हमने जो रेलवे में किया था उसी को हमने एक्सपांड किया पूरी कंट्री के लिए, पूरे क्राइम के लिए, पूरी पुलिस के लिए। देन वी केम आउट विद अ कॉन्सेप्ट क्राइम फ्री भारत। So crime free Bharat is basically it is having 5-pronged strategy to handle. It is giving 5 जो है ना certainty to people. Abhishek, your team is not doing good job. I hope they were supposed to do that visual presentation in a proper way. I think Okay. probably you may say that they should do their work, because the visual presentation is not going as was advised. So there are 5 Okay, sir. I'll take care of strategies. this. Yeah. So there are 5 strategies. First strategy is a certainty of reporting of crime. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ पी में 2-3 जो है ना सीरीज ऑफ जजमेंट दिए और उसका निचोड़ ये था कि यदि संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस को FIR दर्ज करना ही होगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कि कंटेंट से ये इन्फर करना संभव नहीं हो पा रहा है कि वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर उस केस में पुलिस जो है उसमें जांच कर सकती है, लेकिन जो जांच करेगी वो इस बात की जांच करेगी कि क्या संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं बनता। So it will inquire about whether cognizable offense is made out by the content of application or by the content of information given by informant. इस सब के बावजूद भी ग्राउंड में जो है ना कोई बदलाव नहीं आया। आज भी हम और आप बात को समझते हैं और बीइंग बिजी हम ये बात रोज महसूस करते हैं कि बहुत सारे केसेस में बहुत जो है FIR दर्ज कराने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब उस स्ट्रगल से कैसे बाहर निकला जाए, तो मुझे लगा कि इसके लिए एक टेक्नोलॉजी ही एक सहारा है और वो टेक्नोलॉजी जो है ना शुड प्रोवाइड ए प्रॉपर लीगल वे टू गिव दिस सर्टेनिटी।
So the first certainty is registration of FIR without going to Thana. It means we should be in position to get FIR registered by conveying the content of cognizable offense. तो इसके लिए अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसी के ऊपर डेडिकेटेड थे। एक में जो है डेस्कटॉप चैटबॉट ओरिएंटेशन था और दूसरे में वर्चुअल पुलिस स्टेशन एनिमेटेड फिगर का इंटरेक्शन वाला जो है उसमें ओरिएंटेशन था। और इन दोनों ओरिएंटेशन वी आर कैप्चरिंग द कंटेंट ऑफ एफआईआर, और उस कंटेंट ऑफ एफआईआर जो है दैट शुड डिस्क्लोज इंग्रेडिएंट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उस रिपोर्ट से ये चीज सामने निकल के आना चाहिए कि एक संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। तो बैकएंड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मेक इट श्योर कि सभी इंग्रेडिएंट जो है संज्ञेय अपराध के उसमें आ जाए। यदि कोई इंग्रेडिएंट कवर नहीं हुआ है तो बैकएंड इंटेलिजेंस विल आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड विल टेक केयर ऑफ इट। तो किसी ने मुझसे कहा कि भारत में तो जो है ना हर 10 किलोमीटर के दूर पे जो है ना बोली और टोन थोड़ी सी बदल जाती है। सो हाउ वी वुड बी हैंडलिंग दैट, हाउ वी वुड बी डूइंग दैट? So then I came out with a suggestion that wherever is required, we can have the language volunteers. Those can play interface between the complainant and with the technology. And उस भाषा का यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक एडिशनल पर्सन, एडिशनल वॉलंटियर में सर्व एज ए रियल टाइम इंटरप्रेटर। और ये बहुत ही सुपीरियर अरेंजमेंट है। इस प्रोसेस में जो हम पहले जो हमारा वॉलंटियर जाके अपने ऐप से एफआईआर दर्ज कराने में मदद कर रहा है, तो ही इज ए विटनेस एंड ही इज ए विटनेस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एफआईआर, ही इज विटनेस अबाउट फिजिकल एंड मेंटल एंड स्टेटस ऑफ विक्टिम। तो शिकायत जो है ना, जो विक्टिम है उसको चोट का निशान कैसे हैं, उसमें उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, और यदि वो उस समय सीन ऑफ क्राइम पर है तो जो वॉलंटियर है वो ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी सीन ऑफ क्राइम आल्सो, ही कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ सीन ऑफ क्राइम आल्सो। सो he is then witness to the 3 part, that the process of FIR, he is witness to status of victim, and he is a witness to the scene of crime। और इन तीनों का जो है वो एविडेंस भी कैप्चर कर सकता है और उसका अपना स्टेटमेंट भी इट कैन मूव अलोंग विद द एफआईआर। जो ये एफआईआर होगी वो पुलिस के द्वारा जो एफआईआर ली जा रही है उससे ज्यादा सुपीरियर एफआईआर, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि एफआईआर में बहुत सारी जगह वो इंग्रेडिएंट्स नहीं आ पाते हैं, वो चीजें नहीं आ पाती हैं और सेक्शन अप्लाई कर दिए जाते हैं और कई बार सेक्शन ब्लाइंडली अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो कंटेंट वाइज हमारी एफआईआर सुपीरियर होगी। देयर विल बी द 2 विटनेसेस आल्सो फॉर द एफआईआर प्रोसेस। प्रोबब्ली हम जो है उसकी इंजरीज के को भी और इंजरीज को भी फोटोग्राफ कर पाएंगे, और चूंकि उसमें एडवांस टूल्स रहेंगे तो हम इंजरी का मेजरमेंट, इंजरी की डेप्थ, संभवतः हम जो है लेसरटेड और इंसाइज वुंड, एक जो कहना चाहिए भोतले हथियार से जो है एक धारदार हथियार से जो चोट आती है उसको डिफरेंशिएट करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, एंड स्पेशली यदि सिर में वो चोट है तो और भी मुश्किल से डिफरेंशिएट होती है। तो दिस ऐप would be in position to help out and take out the things in such a detail कि that ये इन्फ्लुएंस भी निकाला जा सकेगा कि ये चोट किस हथियार से आई। Then you have the content along with this is FIR is जो है is providing the opportunity to put signatures and 4 kind of the signature। तो
एफआईआर के जो है मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि कंप्लेनेंट होना चाहिए, एक संज्ञेय अपराध की सूचना होना चाहिए, देन जो है उसमें क्या धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगे होना चाहिए, इसके बाद उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सिस्टम जो है ये प्रोवाइड कर रहा है 4 तरीके के सिग्नेचर। नंबर 1, जो आप ऑप्टिकल सिग्नेचर करेंगे, जो मोबाइल फोन पे जो सिग्नेचर करेंगे, दे विल बी कैप्चर्ड ऑन द रियल टाइम, दे आर नॉट अपलोडेड। किसी फोटो पे जो है सिग्नेचर करके उसका फोटोग्राफ नहीं लिया जा रहा है, बल्कि वो मोबाइल फोन पे ही या सिग्नेचर पैड है, ईदर ऑफ टू, उसपे जो है ना रियल टाइम जो है ना वो सिग्नेचर करेंगे, और रियल टाइम वो सिग्नेचर कैप्चर होके, अपलोड नहीं हो रहा है, कैप्चर हो रहे हैं, डेट टाइम और लोकेशन के साथ वो इनक्रिप्ट कर लिए जा रहे हैं, हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट कर लिए जा रहे हैं। ऐसे ही उसका विक्टिम का जो फोटोग्राफ लिया जाएगा वो भी डेट टाइम एंड लोकेशन के साथ इट विल बी इनक्रिप्टेड एंड प्रोटेक्टेड विद द हैश वैल्यू एंड विल बी देन मूविंग इन ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो उसकी इंटीग्रिटी भी वो रहेगी। इसके अलावा 2 और सिग्नेचर का वो रखा गया है, लेकिन उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस one signature is good enough. Optical signature are good enough as far as the legal requirement is concerned. But as a abundance, हमने आधार बेस्ड सिग्नेचर का भी रखा है उसमें, और देन वर्चुअल आईडी बेस्ड आधार सिग्नेचर का रखा है। Now, content FIR signature, this much part has been completed. हमने उसके साथ में 2 विटनेस भी पैदा कर लिए। Now this whole content is moving to the CCTNS through citizen portal, and then Thana Pravari is getting an opportunity to put his digital signature. और जैसे ही थाना प्रभारी अपने सिग्नेचर उस कंटेंट पे करते हैं, then it will become a legally acceptable FIR. अब कुछ हमारे पुलिस मित्रों ने कहा कि साहब आप कैसे जो है थाना प्रभारी को फोर्स करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हमको भी फोर्स करने की कोई इच्छा नहीं है। तो हमने कहा कि यदि वो उसके पास जायज रीजन है रिफ्यूज करने के, तो देयर कुड बी 2 सिचुएशन। नंबर 1, when he is looking for some additional information which he feels is required so that he can take a decision कि cognizable offense हुआ है, so he can put his additional information which will be on the real time basis, will be extracted from complainant, will be made available to थाना प्रभारी। यदि वो कहते हैं कि नहीं साहब ये तो जो है ना संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, then he has to cite reasons, and then when he cites the reason or he puts his signature, then लॉ कहता है कि एसपी का पावर बनता है, एसपी की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस एफआईआर को हैंडल करे और उसमें जो है उसको उसका संज्ञान ले। ये बात जो है कानून में सेक्शन 154(3) में लिखा हुआ है। तो यदि एसपी ने उसमें सिग्नेचर कर दिए तो एफआईआर कंप्लीट होगी। अब यदि एज्यूम करिए कि एसपी जो है ना इज आल्सो ऑफ द व्यू एंड ही इज हैविंग सर्टेन रिजर्वेशन कि साहब जो है ना इसमें एफआईआर ये हमारे पास कारण है जिसके कारण एफआईआर नहीं बनती है, देन इवन एसपी कैन राइट दोज रीजंस, और एसपी के जो रीजंस के साथ फिर जो है सिस्टम और सो कॉल्ड ऐप या बैकग्राउंड सिस्टम, इट विल टेक द होल कंटेंट टू द कंप्लेनेंट वंस अगेन कि भाई देखिए आपने जो बात मुझसे कही है उससे तो एफआईआर बनती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हमने आपका जो है इस सिस्टम के पास, हम एसओ के पास गए तो उन्होंने ये कारण लिखी, फिर हम 154(3) में एसपी के पास गए तो उन्होंने ये कारण बताए हैं। अब नाउ ये आपका कॉल है कि आप ये बताइए कि क्या आपने जो बात मुझसे कही थी वो सही है, क्या आप इस मामले को आगे परस्यू करना चाहते हैं। अज्यूम करिए कि वो कहता है हाँ, तो सिस्टम विल इमीडिएटली प्रोड्यूस वन एफिडेविट, लीगली ड्राफ्टेड एफिडेविट, जिसपे वो जैसे डिजिटल सिग्नेचर करता है, देन सिस्टम जो है 156(3) रेड विद सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, वो इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। वहां से जो जर्नी होगी वो सीसीटीएनएस से जो है आईसीजेएस के थ्रू होगी, दैट इज इंटीग्रेटेड कोर्ट जुडिशियल सिस्टम के तहत जो है वो कोर्ट के पास पहुंच जाएगा।
और 156(3) में जो भी मजिस्ट्रेट को एडिशनल जानकारी चाहिए उसको वो कैप्चर करके ही मजिस्ट्रेट के पास जाए, एंड देन मजिस्ट्रेट आफ्टर जो है डिसाइफरिंग एंड ही कैन डिसाइड एंड ही कैन डायरेक्ट पुलिस टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। तो जो पुलिस का जो मजिस्ट्रेट का डायरेक्शन है उसको लेख करते हुए दैट विल बिकम FIR एंड देन पुलिस विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। अब अज्यूम करिए यदि फरियादी को लगता है कि नहीं उसने तो उससे कुछ गलती हो गई है और उसने गलती किया है और वो ही सेज के नहीं ठीक है, आई वांट टू ड्रॉप इट। सो सिस्टम एट द बैकग्राउंड जो है ना विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि कहीं जो रिफ्यूजल और डिनायल है ये किसी फियर साइकोसिस के थ्रू तो नहीं है, ऐसा एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड में होगा। और वो जो है विक्टिम को या कंप्लेनेंट को फिर फॉरवर्ड करेगा कि आपने हमारी अथॉरिटी का दुरुपयोग किया है और ये अथॉरिटी का दुरुपयोग जो है इट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 182 रेड विद सेक्शन 211 ऑफ IPC। तो इफ यू रिफ्यूज टू फॉलो इट अप it means you have misused my authority and it is a cognizable offense, so you will be prosecuted and I am having all the proofs to prosecute you। पर्पज ये है कि जहां एक और हम सिटीजन को बहुत बड़ा पावर देना चाहते हैं टू लॉस देयर FIR, एट द सेम टाइम वी वांट टू प्रोटेक्ट द अदर पीपल कि वो मिसचिवियस जो है और गलत FIR ना पहुंचे, ऐसा भी जो है ना सिस्टम में व्यवस्था है। नाउ जनरली ये क्वेश्चन जरूर लोग आते हैं और मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ, पीपल से के साथ जिनके पास मोबाइल फोन है, जिनके पास जो है वो सब चीजें हैं, वो तो कहीं ना कहीं वेल टू डू हैं, वेल कनेक्टेड हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हैव्स, तो उनकी FIR तो थोड़े से प्रयास के बाद लिख ही ली जाती है। उन लोगों का क्या जो गांव के गवाड़ी हैं, जो जिनकी कोई नहीं सुनता है, जो थाने में जाते हैं तो थाने के बाहर बिठा दिया जाता है, जिनको चोट भी लगी हुई है तो भी जो है उनका खून बहता रहता है, ऐसे लोगों की क्या आपका सिस्टम मदद करेगा? तो उनके लिए आंसर है यस, वी विल सर्टेनली हेल्प दैट। एंड जो हेल्पिंग है that will be through IoT device. So like Siri, you say, hey Siri, I want to listen this music. Similarly, you can say, hey Siri, I want to report FIR. And that Siri at background and a system will push a nearest volunteer and he will move along with that volunteer will be reaching along with his app. तो volunteer अपने खुद के ऐप के साथ जो है वहां पहुंचेगा। हम Siri के माध्यम से भी पूरी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं किए हैं उसको क्योंकि प्रॉब्लली वो गांव का व्यक्ति जो है ना Siri से बात करके कंफर्टेबली पूरी बात नहीं कह पाएगा। तो वो आसानी से अपनी बात कह पाएगा। तो अब जो है एक वॉलंटियर पहुंच गया और जो हमने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन की है उस प्रोसेस के तहत उस गांव के उस व्यक्ति की भी FIR लिखी जा सकेगी जिसके पास ना तो मोबाइल फोन है, ना जिसके पास जो है ना वो टेक्नोलॉजी से भी है, फिर भी जैसा हमने एक्सप्लेन किया है उस तरीके से उसकी FIR लिख जाएगी और दैट टू बी द सर्टेनिटी। तो आपको जो है ना बिना थाने जाए आपकी ही जगह पे न केवल आपकी FIR लिखी जाएगी बल्कि बहुत सारे एविडेंस जो कि प्रथम दृष्टया जो वॉलंटियर है जो कैप्चर कर सकता है उतना कैप्चर करके वो FIR के साथ ही उसको भेज देगा। दैट विल बी द एडेड एडवांटेज। एंड पूरी प्रोसेस के जो है विटनेसेस एंड एडिशनल विटनेस जो है ना पैदा होंगे, दैट इज अनदर एडवांटेज। और यदि हमें कहीं लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का जो है ना भी उठाना पड़ता है तो जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर इंटरफेस जनरेट होगा ही विल बी ए थर्ड विटनेस, तो वो एक और एडेड एडवांटेज। तो जितने भी हमारे हैंडीकैप हैं वो हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनको हम अपनी सीमा मान रहे थे, जिसको हम मान रहे थे कि हम किसको कैसे नेगोशिएट करेंगे, वो नेगोशिएट करके हम जो है और एक सुपीरियर सिस्टम पैदा कर पा रहे हैं। दैट विल बी द एडवांटेज एंड दैट्स हाउ we will be in position to have first certainty, that is the certainty of registration of FIR. Then the second certainty है that is about certainty of detection. तो certainty of detection भी एक बड़ा powerful concept है।
देखिए, पुलिस का जो व्यक्ति जो पुलिस का भर्ती हुआ है, वो ये सोच के भर्ती होता है कि हम डंडे वाला काम करेंगे, कहीं पे डिप्लॉय होंगे। जो पुलिस का एक टिपिकल इमेज है, उस इमेज के साथ वो भर्ती करता है। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा उस समय कि उसे जो ना मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसे साइबर क्राइम के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसे टेररिज्म से रिलेटेड केसेस इन्वेस्टिगेट करना पड़ेंगे, इतने क्लिष्ट केसेस इन्वेस्टिगेट, व्हाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेट करना होंगे, ये उसने कभी सोचा नहीं होगा। और कई बार वो उस बात के लिए कैपेबल नहीं होता। यदि वो उतना कैपेबल होता तो वो किसी कॉलेज और उसमें पहुंच के कोई प्रोफेसर बन जाता, लेकिन वो पुलिस का रोल उसने अदा किया। बट द सिस्टम इज पुटिंग हिम इन टू मच इनकन्वीनियंस। तो ऐसे जो हवलदार रामदीन सिंह का भी जो है ना, हम लोग बहुत मदद करने के मूड में है। और अभी जो बेचारा वो ज्ञान का भी अभाव है, स्किल सेट का भी अभाव है, अभी वो बहुत तरीके से जो है झगड़ रहा है, वो हर किसी से स्ट्रगल कर रहा है, अकेला पसीना बहा रहा है, और कई बार उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ऐसे हवलदार रामदीन सिंह की मदद के लिए पूरी जो है कनायत जो है ना पैदा की जा रही है। तो एक तो सबसे पहले जो है एक ऐप बनाया गया है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप। इस ऐप में जो है, जो आपने सामान्य ऐप देखे होंगे, उससे थोड़ा सा हटके ऐप है। आप जो है ना एक बटन दबाते हैं, फिर फलाना करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, तब जो है जो काम आप करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। ये ऐप जो है पीछे से एआई से जो है ना कंट्रोल्ड होगा, और एआई विल गाइड कि ऐप कैसे अपने आप अनफोल्ड करें। तो जो अंदर की इंट्रिकेसीज है वो हवलदार महोदय को समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जो है इट विल बी अनफोल्डेड बाय द ऐप इटसेल्फ, नंबर 1। दूसरी बात है, जो ऐप जो है वो उसकी इतनी ज्यादा मदद करेगा और साथ में क्वालिटी चेक भी लाएगा। तो जैसे जिन करिए क्राइम सीन है, तो पूरे क्राइम सीन का एक बड़ा सा जो है ना पहले फोटोग्राफ होगा, फिर उसकी ग्रिड बन जाएगी, ग्रिड में जो है ना जूम्ड जो है ना फोटोग्राफ्स होंगे, और फोटोग्राफ भी कई तरीके के होंगे, 2D फोटोग्राफी, 3D फोटोग्राफी, IR फोटोग्राफी, UV फोटोग्राफी। और बाद में जो है वी आर हैविंग दैट इंटेंशन कि हम जो है ना ड्रोन फोटोग्राफी, वी विल गो द रोबोटिक फोटोग्राफी, और ये फोटोग्राफी भी आप जैसे स्टार्टअप के माध्यम से आएगी। Because we really do not want to provide the drone or robots to our police, because we know कि भाई वो जो बड़ी महंगी चीज होती है, पुलिस वाले जो है ना उसको बड़े सजो के रखते हैं और स्टोर रूम में रख देते हैं। तो स्टोर रूम में रखने से काम नहीं बनने वाला है। We need someone who should do it। तो CCTNS में जैसे ही या सिस्टम को जैसे ही मालूम पड़ा कि एक ऑफेंस हुआ है, that offense will generate a requisition to the startup and the startup will press in action, और वो उसको कैप्चर करके रियल टाइम बेसिस पे जो है ना उसको क्लाउड में भेज देगा, and those startup will be having no business with the content part of it. So content will be repository of the National Authority for Scientific and Technical Assistance। एक नई अथॉरिटी को हमने इन्विसाइज किया है अंडर जो है शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 65C के तहत, उसको बाद में विस्तार में बताऊंगा। तो जो डाटा जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में, एविडेंस कैप्चर करने में और क्वालिटी एविडेंस कैप्चर करने में भी हवलदार रामदीन सिंह की मदद की जाएगी। सिस्टम विल हेल्प कि प्रॉपर इल्यूमिनेशन है कि नहीं है, इस तरीके की छोटी छोटी चीजों में भी मदद की जाएगी। Then it will capture the blood mass, it will capture a number of other things जो संभवतः naked eye से देखना मुश्किल होगा, because there will be a number of the grid photography, और पीछे बैकएंड इंटेलिजेंस अभी बेसिक इस बात को मानेगा कि we have already created lot of technology in this Smart India Hackathon also, which deals with the face expression, face recognition, even gesture recognition, even cloth recognition, even bag and accessories recognition, vehicle recognition, associate recognition, and number of recognitions. So the technology would be in position to identify those articles. It will be in position to identify blood mass. It will be in position to identify a number of other things, and probably it would be in position to recreate the crime. And
Havaldar Ramdin Singh will be having the advantage of the recreated scene of crime also. So now backend system will जो है ना push information from the historical data set. Backend intelligence would be in position to requisition evidences from IoT devices and CCTV devices. वो जो है ना हवलदार रामदीन सिंह का जो लीगल पावर है 91 में, उसको यूज करने में उसकी मदद करेगा ऑन द n नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज. एंड देन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रिजर्वेशन के बारे में हो, चाहे वो टेलीकॉम अथॉरिटी के पास हो अबाउट CDR और PSTN डाटा और VLR डाटा, व्हाटएवर, वो सब चीजों को, whether it is related to the movement, whether it is related to the communication, whether it is related to the conversation, whether it is related to the money movement, whether it is related to physical movement, उन सभी movements को rich data जो है ना analyze करके it will push for the investigation. और जो technology करेगी, technology will not work for the superiority here. Technology will work in conjunction to help human being. तो वो technology जो है, हालांकि वो चूंकि अपन बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इन कंजक्शन यूज करेंगे तो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव का स्कोप लगभग 0 है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये क्लेम करने नहीं जाएगा कि साहब हम जो कर रहे हैं वो 200% सही है, बल्कि वो क्या करेगा कि उस पूरे कंटेंट को वो रियल टाइम बेसिस पे एक्सपर्ट को परोस देगा. और एक्सपर्ट के जो ऐप है उसको भी जो है ना पावरफुल ऐप बनाया गया है, सो दैट ही कैन यूज द टूल्स अवेलेबल इन द ऐप to जो है ना analyze things and give a very very firm and proper expert opinion. यदि इस काम के लिए वो अपने यदि माइक्रोस्कोप का यूज करता है या कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करता है, तो हमारा ऐप जो है IoT डिवाइस के माध्यम से उसके उन इक्विपमेंट से भी बात करें. एंड देन जो है दैट expert opinion would be made available to Havaldar Ramdin Singh also. So Ramdin Singh will be very very powerful. इसी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में वी हैव वन प्रोजेक्ट दैट इज अबाउट स्मार्ट कंप्यूटर पोर्ट्रेट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर. इसी में जो है ना हाउ वी कैन हैव मूव फ्रॉम द से क्रिमिनल क्लस्टर टू द हॉट स्पॉट्स. एंड जब क्रिमिनल जो है अपने घर से निकल रहा है, वी आर इन पोजिशन टू से कि वेदर ही इज मूविंग जस्ट फॉर सम नॉर्मल वर्क और ही इज मूविंग टू कमिट सम क्राइम. That kind of the analytics we have already developed. इसका मतलब ये है कि यदि एक क्रिमिनल जो है बाहर निकल के क्राइम करना चाह रहा है, तो सिस्टम वुड बी इन पोजिशन टू इंडिकेट इट फॉर द प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट. पुलिस का भी, और जरूरत पड़ती है यदि पुलिस कम पड़ती है तो कम्युनिटी के वॉलंटियर्स को भी वो डिप्लॉय कर पाएगा. एंड एट द डिसीजन ऑफ द सिस्टम we can capture that person with the proof. और यदि तैयारी जहां पर preparation is an offense, वहां पे उस पर substantiation हो पाएगा, और जहां पर preparation is not an offense, उस केस में जो है attempt है तो attempt वाला एक्शन हो जाएगा. Otherwise we can take action under the preventive action. अभी अपन थोड़ा सा जल्दी से चौथी स्टेज पे पहुंच गए, थोड़ा तीसरी स्टेज की बात करते हैं. तो सेकंड स्टेज में हम लोगों ने सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन में आ गए, और चूंकि मैपिंग इतनी हाई हो रही है, तो जब हम एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि GRB में एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और 120 क्राइम अनफोल्ड हो रहे हैं, ऐसे ही एक इनपुट पे एक क्राइम को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मालूम पड़ा कि 200 क्राइम डिटेक्ट होंगे, और उसमें वो क्राइम भी डिटेक्ट होंगे जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं हुई है. तो हमारे पास वो ऑफेंसेस भी होंगे जिसमें हम कहेंगे कि आई नो हु हैज कमिटेड क्राइम बट वी डोंट हैव एनी FIR, एंड प्रोबब्ली वी कैन गो प्रोएक्टिवली टू द पब्लिक कि प्लीज कम फॉरवर्ड, प्रोबब्ली सम क्राइम हैज बीन कमिटेड विद समवन, प्लीज कम फॉरवर्ड, एंड दीज आर द डिटेल्स वेयर द क्राइम हैज बीन कमिटेड. तो सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन के साथ वी आर मूविंग टू द सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन. जहां सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो अभी अपन ने पहले हवलदार रामदीन सिंह की मदद की बात की, अब हम कोर्ट की मदद की बात कर रहे हैं. द सिस्टम विल बी हेल्पिंग आउट कोर्ट इन इशुएंस ऑफ समन्स वारंट, इन इशुएंस ऑफ द प्रोसेसेस.
अथॉरिटी उनकी होगी, लेकिन जो है सिस्टम उनको मदद करेगा। Probably we will be in position to factor in very important things। एज्यूम करिए कि मान लो किसी विटनेस के बिटिया की शादी है और वो पहले से इंडिकेट कर देता है, तो probably we would be in position to help magistrate to fix the date in such a way that जो विटनेस की कन्वीनियंस है that can also be factored in। फिर जो है कोर्ट को उसको पुलिस के पास नहीं भेजना है, हमारा सिस्टम ही सीधे उसको बॉर्डर के पास ले जाएगा। और आपने शाम को 5 बजे जो है समन्स वारंट जनरेट किया, मालूम पड़ा कि रात के पहले ही वो तामील होके डिजिटल प्रूफ के साथ कोर्ट के पास पहुंच गया। सो हमारी कैपेबिलिटी जो है टू डू द समन्स वारंट दैट विल बी मैनीफोल्ड, वेरी मैनीफोल्ड। और हम जो है ना बहुत फास्ट जो है ना ट्रायल के कोर्ट ट्रायल सिस्टम, अभी भी कोर्ट कुछ वीडियो बेस्ड ट्रायल कर रही है, बट इट इज नॉट ए वीडियो बेस्ड ट्रायल, इट इज मोर ऑफ ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। When I say video based trial, I really mean video based trial, जिसमें हमारा सिस्टम जो है ना, पहली बात तो जो अपन ने पहले कहा है कि आपको थाने जाने में की जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने के लिए। अब हम दूसरा स्लोगन कह रहे हैं कि आपको अपने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो जो विक्टिम जहां है वहीं से उसके बयान हो जाएंगे, गवाह जहां है वहां उसके बयान हो जाएंगे, जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने चैम्बर में बैठेगा, जो डिफेंस लॉयर है वो अपने चैम्बर में बैठेगा, पीए जो रहता है कोर्ट का वो अपने चैम्बर में होगा, और जज साहब अपने चैम्बर में होंगे। जज साहब के चैम्बर में 5-6 टेलीविजन होंगे जिसमें कि अलग अलग चीज चल रही होगी, और बहुत बारीकी से हम वो काम कर पाएंगे जो अभी का जो लीगल सिस्टम है नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारा सिस्टम उन प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करेगा। पहला प्रोटोकॉल रहेगा आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, देन इट विल गो फॉर द सेकंड प्रोटोकॉल कि he should not be under duress of any influence। तो टेक्नोलॉजी विल टेक केयर ऑफ इट कि वो किसी फियर में नहीं है, वो सब चीजों को, एंड इट विल सर्टिफाई टू द कोर्ट कि दैट जो आपका ये विटनेस है ही इज नॉट अंडर एनी फियर साइकोसिस। और जब वो डिपोजिशन भी कर रहा होगा तो देयर विल बी मेनी कैमराज व्हिच विल बी फोकस्ड ऑन वेरियस पार्ट, एंड प्रोबब्ली वी विल बी इन पोजीशन कि वो जब झूठ बोलेगा तो शायद हम झूठ पकड़ने की भी स्थिति में होंगे। सो दैट काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर टॉकिंग। हम जो है उस समय उन कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को भी वहां दिखा पाएंगे। कोर्ट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्मज्ड होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। वी कैन इवन हेल्प देम कि वो जो है उनको जो है बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगा के हाउ वी कैन मेक इट मोस्ट लेजिबल, इवन द ओल्ड डॉक्यूमेंट वेयर द इवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट लेजिबल। On the real time, even in old cases, we will be in position to help out. Hey, this document which is being claimed as a genuine or authentic document, it is not authentic document, and probably it will generate a request. It is a forged document. It is another offense, and probably it will generate some FIR for that also with the approval of the magistrate, something like that. So a very advanced kind of support system कोर्ट विल आल्सो बी इन ऑफिंग। आप लोग चूंकि इस जर्नी के सहभागी रहे हैं, आपने वहां देखा है सब चीज को, सो यू कैन वाउच फॉर इट कि वी आर हाउ क्लोज टू दैट, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। सिस्टम जो है जब एविडेंस कैप्चर कर रहा है उसी समय वो डेट टाइम लोकेशन के साथ हर चीज को इंटीग्रेट जो है ना इनक्रिप्ट करता जा रहा है, लॉक करता जा रहा है, एसएमएल से प्रोटेक्ट करता जा रहा है, ब्लॉकचेन से उसको प्रोटेक्ट करता जा रहा है। Hence, even if there is a technology available to manipulate, that technology would not be having room or space to go to that kind of things. As you know, there's a deep fakes and a number of the nasty technology they have come up, and they are playing havoc with digital evidences. But in our case, that kind of the havoc those technology would not be in position to play. So we are very cautious while planning for it. We have already created a robust system of cyber security for cyber investigation also. So backend engine will be keep on working for the investigation and security also. तो अब जो है अपन तीसरे
पे जो है ना हो गया है, जिसमें कि 3 सर्टिफिकेट भी उसको दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ द इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो वो एविडेंस जो है ना दैट विल बिकम ऑलमोस्ट इनफेलिबल। और जो पहले एविडेंस बहुत छोटी चीज के रहते थे, अबाउट ओनली द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट अंडर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के तहत, अब हमारे पास सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की एविडेंस भी होंगे। द कंडक्ट प्रायर टू इंसिडेंट, कंडक्ट आफ्टर द इंसिडेंट। हम उससे ये कह सकते हैं कि ये इन लोगों ने अपराध किया है, ये इतने बजे निकले हैं, इस गाड़ी में थे, इन्होंने ये पहना हुआ था, फिर यहाँ गए, इन्होंने कपड़े बदल लिए, फिर यहाँ पे 2 लोग और मिले। If we want, we can create a sort of a animated movie for the help of the magistrate along with the certified proof from the experts and witnesses. So जहाँ एक और comprehension जो है ना will become easier. At the same time, we will push the evidences which will be infallible. अब जो है then we can move to the next round, that is prevention की भी अपन ने बात कर ली है। और इस जगह पे एक बार फिर से क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन एंड सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन से क्या हम अपने देश को अपराध मुक्त कर लेंगे? माय ओन आंसर नो। तो फिर क्या फिर कैसे आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत करेंगे? यदि जेल के हालात जो है ना बाहर के हालात से अच्छे हैं, then we will go and commit crime for going into the jail, and it is very dangerous situation. इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट मैं हमेशा बार बार दोहराता हूं कि क्रिमिनल्स वुड नॉट लाइक टू बी रिहेबिलिटेटेड, क्योंकि अभी जो है उनके एफर्ट्स में रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। यदि वो एक जो है ना डकैती करते हैं, एक चोरी करते हैं, उनको मालूम पड़ा 10 लाख का माल मिल गया, 20 लाख का माल मिल गया, 30 लाख का माल मिल गया। यदि उन्होंने चेन स्नैचिंग की, आजकल चेन की जो है ना सोने की कीमत इतनी ज्यादा है, तो हर तरीके के क्राइम इट इज वेरी वेरी हाई। वो एक रात में 5 लाख से लेके 10 लाख से लेके 50 लाख तक लेके कुछ भी जो है ना उनको अर्निंग हो सकती है। तो भाई दे वुड लाइक टू बी रिहेबिलिटेटेड। सो सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन के साथ दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो गया है, विलिंगनेस टू गेट रिहेबिलिटेटेड। So probably criminal would not like to be rehabilitated. अब सवाल उठता है कि यदि क्रिमिनल रिहेबिलिटेट नहीं होना चाहता तो आप कैसे रिहेबिलिटेट करोगे? So then comes the first 4 certainties कि जब उसको अपराध करने का अवसर नहीं है, पहले रिपोर्टिंग उसके 100% केसेस में हो रही है, फिर डिटेक्शन 100% केसेस में हो रहा है, फिर हम जो है ना में कर ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम आपको अपराध भी नहीं करने देंगे। Then with that kind of the scenario, criminal will not be having those kind of the option, and probably they would like to be settled. तो हम उनको rehabilitate करेंगे along with the n number of type of the state guarantees, so that वो criminal रहा है या उसका conviction हो गया है या वो जेल गया है, वो handicap उसको जो है ना आए, हम ये भी ध्यान रखेंगे। और हम उसको जहां जरूरत होगी उसको वो स्किल सेट भी देंगे, जिससे कि उसको उसका एक एज ए प्रॉपर सिटीजन उसके रिहेबिलिटेशन में कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार जो है वी विल बी जो है यू विल नाउ एग्री कि व्हेन देयर विल बी नो क्रिमिनल देन हु विल कमिट क्राइम। अभी भी एक डायमेंशन हमने नहीं कही है जानबूझ के कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ द क्राइम, द क्राइम व्हिच हैज बीन डन विद द सम इंसेंटिव टू कमिट क्राइम। तो उसके दिमाग में कोई मॉनेटरी इंसेंटिव है, जैसे चोरी डकैती, इस तरीके की क्राइम। व्हाट अबाउट द रिएक्शनरी क्राइम? तो हम सब लोग इतने टेंशन में रह रहे हैं कि हम लोग चलते फिरते वॉल्केनो हो गए, ज्वालामुखी हो गए हैं, हम अनरिलेटेड जो है ना बात से फट पड़ते हैं। तो यदि मान लो हमने आपसे कुछ कहा, हमने आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया, आपने कहा अच्छा मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया, आपके पास गन है, आपने निकाला, मुझे शूट कर दिया। नाउ हाउ दिस काइंड ऑफ द क्राइम वुड बी कंट्रोल्ड? सो इन बिगिनिंग देयर विल बी probably it will be difficult to control such crime, लेकिन जैसे जैसे लोगों का जो है सिस्टम में फेथ बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, then their ज्वालामुखी will get deflated. They will become a normal citizen. They will be normal citizen
hence जो है it will be in position to even check those crime also, and we will be having a liberty to live in a crime free environment. And when we talk crime free environment, it guarantee corruption free environment also, because corruption is a type of a crime only. अभी अपन ने जितनी बात की वो अपराध मुक्त भारत की बात की। अब अपन को बात करना है समर्थ भारत की, क्योंकि ये यात्रा तब पूरी होगी जब जो है ना दूध की नदियां बहेंगी, जब जो है ना धन की नदियां बहेंगी। तो वो कैसे बहेंगी? तो उसके लिए भी एक ऐप बनाया गया है, उसके ऐप का नाम दिया गया है सिटीजन ऐप, और उसमें बेसिकली 3 तरीके के लोगों को हम पूरे सोसाइटी को 3 भागों में बांट रहे हैं। वैसे तो कानून ने तो सबको एक ही भाषा में रखा है। कानून कहता है कि सेक्शन 39 के तहत यदि आपको किसी अपराध आपके सामने हो रहा है, या आपको अपराध की जानकारी है, या अपराध की तैयारी हो रही है, इसकी जानकारी है, आपको कानूनी रूप से यह बात 39 सेक्शन के तहत पुलिस को या कोर्ट को बताना होगा। वो ये भी कह रहा है कि यदि आपकी आंखों के सामने अपराध हुआ है तो उसे आप गिरफ्तार करना होगा, एंड दैट गिरफ्तारी जो है दैट टेक्स प्लेस अंडर सेक्शन 43, और पुलिस को कायदे से वहां रीअरेस्ट करना चाहिए। फिर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस सेक्शन ने डाल दी। वो कह रहा है कि भाई आप जो है यदि मेरी जो है पुलिस यदि कहेगी आपको, तो आपको उसकी मदद करना होगी, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो है ना और आगे जाता है, कहता है कि साहब पुलिस तो ठीक है, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव या कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव भी आपसे कहे कि हमें मदद की जरूरत है, तो आप कानूनी रूप से मदद करने के लिए बाध्य हैं। यही जिम्मेवारी सेक्शन 40 के तहत गांव के लोगों पे भी डाली गई है, और जिनको हम कोटवार कहते हैं और या रूरल जो है प्रभारी कहते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में है, उनकी ये जिम्मेवारी सेक्शन 40 के तहत डाली गई है। आप जब भी कोई अपराध करते हैं तो पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करे कि आपने अपराध किया है, राइट, तभी आपको कोर्ट से सजा मिलती है। लेकिन सेक्शन 39 कहता है कि ये आम आदमी की जिम्मेवारी है कि ही इज इनोसेंट, सो प्रूविंग हिज इनोसेंस और देयर इनोसेंस, इट इज द बर्डन ऑन द सिटीजन। जहां हमने इतनी जिम्मेवारी आदमी के ऊपर डाली है और वो बेचारा घबरा रहा है, वो कहता है कि साहब जो है कोर्ट में कौन जाएगा, कोर्ट में इज नॉट आल्सो वेरी रिसेप्टिव, कोर्ट की भाषा भी जो है ना उसमें होता है आपको हुक्म कीजिए यहाँ हाजिर हो, या वो कोर्ट में कहता है फलाने फलाने हाजिर हो। अरे भाई मैं तो गवाह हूँ, मुझे क्यों हाजिर करा? सो एनीवे वी नीड टू चेंज दोस पुरानी जो प्रोसेसेस हैं उनको अब चेंज करने की जरूरत है। इट शुड बी लिटिल मोर रिस्पेक्टफुल टू द पीपल those who are there for helping out the court for जो है delivery of the justice. There is no reason कि हमारी जो पुराने तरीके के जो तरीका है उसको अब ना बदलें. Let the witnesses, let the victim should get a due respect in the eyes of the court, and they should be all wherewithal to really help out the people. उन्होंने तो ऑलरेडी ट्रॉमा लिया हुआ है और फिर ट्रॉमा के बाद जो है ना वो पहुंचे हुए हैं, उनको जो है विटनेस का भी जो है डिफेंस लॉयर भी उनकी रैगिंग करता है. तो कुल मिला के उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, विच इज दैट इज मिसिंग. तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समर्थ बनाया जाए, तभी हम समर्थ भारत पैदा कर पाएंगे. तो ये सामर्थ्य जो है इस ऐप के थ्रू आ रहे हैं. 4 फेज है. एक फेज है सिक्योरिटी फेज, दूसरा फेज है नीड फेज, जनरल नीड फेज, तीसरा फेज है और यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड फेज है दैट इज क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टार्टअप्स. पूरे स्टार्टअप की खदान यहीं पे भरी हुई है. वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे स्टार्टअप की खदान वहां पैदा हो रही है. तो पहले अपन बात कर लें सिक्योरिटी वाले पार्ट. तो पहला सिक्योरिटी है, दूसरा जनरल नीड है, तीसरा निश नीड का मतलब है वो जिस प्रोफेशन में है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो रोड पे जो है ना फेरी वाला हो, हर किसी की निश नीड को ये सिस्टम मदद करे.
तो हम इंडस्ट्रीज की भी मदद करेंगे और एक हम गांव की कबाड़ी की भी मदद करेंगे, और वो भी उसके प्रोफेशनल एरिया में। यदि वो फार्मर है तो हम फार्मर की अलग तरह से मदद करेंगे, यदि मान लो वो हाथ ठेले वाला है तो उसके अलग तरह से मदद करेंगे, जो जिस कर, यदि सीनियर सिटीजन है तो उसके अलग तरह से मदद करेंगे। देन आता है इंफॉर्मेशन नीड। तो आपको पकी हुई इंफॉर्मेशन परोसी जाए जिससे आपका समय कम जाए, क्योंकि आजकल हम इतनी इंफॉर्मेशन इतनी सारी जगह से आ रही है कि वेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो कैन जो है ना ये सिस्टम कैन हेल्प आउट कि हमें जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो वेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना हमारे पास पहुंचे, जो गलत ना हो। तो वी आर टेकिंग दैट अनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर सेल्फ कि हम जो है वो पकी पकाई खबर वो भी जिसकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको दें। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारी जो ऐप है वो पहले ही फेज में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि क्राइम फ्री भारत के लिए उतना ही पर्याप्त है। लेकिन ये जो बाकी 3 फेज बनाए गए हैं, ये 3 फेज जो है बेसिकली टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यंगस्टर्स। बिल्कुल एक खदान जो है ना पैदा की जा रही है, एंड टू एंड खदान फॉर द एन नंबर ऑफ स्टार्टअप। हजारों स्टार्टअप होंगे और फिर उनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, तो एक बड़ी एक जो है व्यवस्था में चेंज आए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो अभी स्टार्टअप को छोड़ देते हैं, अभी अपन जनरल पब्लिक की बात करते हैं, उसको भी 5-5 रेवेन्यू स्ट्रीम दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहते हैं ना जब ईश्वर वाला खुश होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मुझे लगता है कि अब ईश्वर जो है भारत से खुश है, भारत के हर नागरिक से खुश है और उसको को छप्पड़ फाड़ के देना चाहता है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतने सारा इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं वो देवी खुशी है, और उसी खुशी से जो है वो धन और वैभव की गंगा जो है ना बहेगी। आई विल जस्ट एक्सप्लेन हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो सिक्योरिटी में जो फेज है, पहले फेज में जो ऑलरेडी एफआईआर वाला पार्ट है जो अपन ने कवर कर लिया है, तो एफआईआर और कंप्लेंट हाउ इट विल बी मूविंग, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी फेज। सेकंड पार्ट है दैट इज द फीडबैक एंड कैप्चरिंग ऑफ एविडेंसेस। तो बहुत सारी चीजें हम लोग के साथ घटित होती हैं, हम देखते हैं बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्या हम बुरी चीज ही देखें? मेरा सोचना है कि नहीं, हमें अच्छी चीज भी देखना है, और हम अच्छी चीज को देख के उसको जो है यदि हम रीइंफोर्स करते हैं, यदि हम जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है यदि हम उसको रिवार्ड देते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इट इज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। सो लेट्स वर्क विद द पॉजिटिविटी। देन जो है यदि आपने कोई नेगेटिव चीज ऑब्जर्व की है, तो अभी आप विक्टिम नहीं है, आप कोई एफआईआर नहीं कर रहे हैं, जस्ट यू हैव ऑब्जर्व समथिंग, you have collected details about that and you can push it to the competent authority so that यदि वो negativity है that can be captured before it is becoming ulcer। तो जब वो अपराध बनने के पहले ही उसको अटेम्प्ट कर लेना है। वो कहते हैं कि यदि छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाए तो बड़ी चीज नहीं होती है। तो यदि हम वो छोटी नेगेटिव चीज को कैप्चर करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को चूंकि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फोर्स करने की स्थिति में है, बिकॉज वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन, वी आर हैविंग एविडेंस and we know that it is your duty, it is your obligation to do it। अभी तक कोई सिस्टम नहीं है जो आपको इस बात के लिए फोर्स कर। तो जो नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस भी है जो कि अभी किसी अपराध में कन्वर्ट नहीं हुई है, इवन those could be जो है ना negatively reinforced and we would be in position to take care of that। Now we are moving to the next phase of the same, that is the evidence capturing। So इसमें थोड़ा सा हमको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह सरकार को जारी करना होंगे, जहां पे मेरी सोच है कि जो चालान है, जो एविडेंस है, इसका 50% जो है ना कैप्चरिंग वाले को जाना चाहिए। और कैप्चरिंग वाला कौन कौन होगा? या तो वॉलंटियर होगा जो वॉलंटियर ऐप से जो है ना उसे कैप्चर करेगा, या IoT डिवाइस होगा, या CCTV डिवाइस होंगे। जनरली दीज आर द 3 सोर्सेस जहां से कि ये कैप्चर होगा। इसमें कैप्चरिंग वर्ड का बार-बार हम यूज कर रहे हैं, अपलोडिंग का कोई वर्ड नहीं। सो वी विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग, यू कैन सेंड इट बट देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एविडेंस, देन इट विल बी पुश्ड टू द पुलिस फॉर जस्ट फॉर इंक्वायरी एंड दे हैव टू टेक ए कॉल कि वो रिलायबल है नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एज ए सिस्टम, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दोज एविडेंसेस जो ऐप के थ्रू जो है ना कैप्चर हो रहे हैं, क्योंकि ऐप जो है ना वो सब प्रिकॉशंस लेगा, दे विल बी कैप्चर्ड ऑन द रियल टाइम बेसिस, डेट एंड टाइम, एंड उसके साथ जो है ना वो एनक्रिप्ट कर दिए जाएंगे।
then जो है ना they will be pushed to the competent authority, and the moment competent authority puts signature, that document will become चालान। और सिस्टम बैकएंड से जो है, चाहे आरटीओ का सिस्टम हो या इंश्योरेंस का सिस्टम हो, वहां से आज और सीसीटीवी के सिस्टम से, और वहां से इट इज इन पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि हु इज द ड्राइवर, हु इज द ऑफेंडर, एंड देन इट विल टेक द चालान टू द ऑफेंडर। ऑफेंडर के पास ऑप्शन है कि नीचे पेमेंट लिंक है, पेमेंट करिए। यदि आपने पेमेंट के लिए सभी तरीके के ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन से क्या पेमेंट करेंगे, it will cut it to the two part. 50% money will go to the government treasury and 50% money will go to the volunteer or owner of the devices जिसने उस एविडेंस को कैप्चर किया है। यदि वो कॉल करता है कि नहीं साहब मैं तो जमा नहीं करता हूं, तो then all evidences will be pushed to the ICJS system to the court, and कोर्ट की प्रोसेस बहुत इनकन्वीनियंट भी होगी और बहुत कॉस्टली भी पड़ेगी। So majority of the people would like to make the payment to the child. अब जो है ना मिनिमम पेनल्टी लगभग 2000 रुपए है, तो एक बटन आपने दबाया तो 1000 जो है ना वॉलंटियर को मिलेगा और 1000 जो है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। अब सोचिए यदि 137 करोड़ लोग यदि बटन दबाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कह रहे हैं, तो एक बटन दबने पे 137 करोड़ लोग जो है उसमें 1000 जोड़ दीजिए तो 1,37,000 करोड़ जो है ना रेवेन्यू पब्लिक के लिए जनरेट होगी, और 1,37,000 करोड़ रेवेन्यू जो है वो ट्रेजरी और सरकार के लिए। Probably it will be a very big money, very very big money. तो ये मनी जो है that will be one revenue stream. Then second revenue stream जो summons warrants वगैरह हैं, they will be directly prosecuted, so that will be the second revenue stream. तो जो volunteer जो है उसको करेगा, उसको उसका revenue stream मिलेगा। Then third revenue stream में भी कि जो road accidents हैं, disasters हैं, उसमें जो volunteers होंगे, they will be properly trained, and we would like them even to give that revenue stream to them also. Because what I feel, कि when so much of revenue is being created, let it be flow to the people. Then fourth revenue stream will be coming from the crime related information. And उसने एक information दी और हमने उसको मैप करके मालूम पड़ा कि 200 केसेस डिटेक्ट कर लिए, और यदि उसको एक केस में हम 100 रुपए यदि इनाम देते हैं तो उसने 20,000 रुपए का जो है ना प्रमोशनल वाउचर जो है ना अर्न कर लिया। That kind of the money will be flowing to them. अब आप इमेजिन करिए कि एक स्टूडेंट है, वो घर से निकल रहा है, उसने आते जाते 2-3 वायलेशन कैप्चर कर लिए, अपना क्लास अटेंड करने के बाद या कोचिंग अटेंड करने के बाद वापस जा रहा है, उसमें भी 2-3 कर लिए, मालूम पड़ा कि उसने 4-5 हजार रुपए पैदा कर लिया। यदि this kind of the money, if he would be in position to generate, probably he will not be requiring money from his parents, he will not be requiring money from anybody. तो वो अपने आप को शुरू से ही जो है सपोर्ट कर पाएगा, अपने आप को जो ना पढ़ने से लेकर हर चीज को सपोर्ट कर पाएगा, and that will be true for the coolie, that will be true for the laborer. अब एक लेबर जो है दिन भर मेहनत करता है, उसे 350-400 रुपए के आसपास जो है वो मेहनताना मिलता है। यदि वो यहाँ पे एक बटन दबाता है तो उसे 1000 रुपए मिल जाए। So now he will also say कि काम पे जा रहे हैं, चलो काम तो करना ही है, लेकिन आते जाते पहले कुछ एक काम कर लिया जाए। And probably there will be so many eyes and so many things will be captured. It will be converting the society into a rule compliant society. तो इस तरीके से धन की गंगा जो है वो आम वॉलंटियर्स को और आम सिटीजन्स को होगी। अब नाउ वी कम टू द नीड्स। सो ऑल काइंड ऑफ द नीड्स, जो भी आप नीड आप देख रहे हैं, जितने भी आप ऐप देख रहे हैं, वो सब ऐप जो है ना इसमें बैकग्राउंड में रहेंगे। तो अब जो है ना लोगों को बहुत सारे ऐप जो है ना की जरूरत नहीं होगी, इस सिंगल ऐप से उसको सर्विसेज मिल पाएंगी, और वो सर्विसेज जो है विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टार्टअप्स। अब आप कहेंगे कि साहब उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए तो अभी भी बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं। सो those whosoever will approach us, we will also integrate them also. तो उनको भी लेंगे और नए जो है ना स्टार्टअप्स को भी लेंगे, और पूरी रेंज जो है of the services would be available for the startup. Rather,
end to end जो है ना things will be identified and then they should be converted into the startup opportunity. यहाँ से जो है ना then we are moving to the this need area, and this need area will be also having a array of start. For example, एक किसान को ले लेना, तो किसान को पहली आवश्यकता क्या है, उसको ये सलाह देने की कि वो क्या बोए। तो अभी जो है हमारी जितनी प्रॉब्लम है दैट इज दैट हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई में हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं कि एक साल जो है प्याज 150 रुपए किलो बिक गया तो सबने प्याज बो दिया, अगले साल वो प्याज जो है ना रोडों पे बिकता है, क्योंकि जो है ना वो इतना ज्यादा ओवर प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि उसको कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। और हमने एंसिलरी इंडस्ट्रीज पैदा नहीं की हैं जिससे कि उसको हम लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करके या उसको दूसरे तरीके के फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वी कैन यूज इट। सो अब जरूरत इसमें ये आ गई है कि क्या हम जो है अगेन एक फार्मर एप्स के माध्यम से क्या हम उसे गाइड कर सकते हैं कि एवरीबॉडी शुड जो है शुड इंडिकेट कि वो कितना क्या बोना चाहता है, और बैकएंड मीटर जो है ना वो नापता जा रहा है कि कितना प्रोडक्शन के हम लेवल पे पहुंच गए हैं, और जैसे ही इनफ प्रोडक्शन के लेवल पे पहुंच जाएंगे इट विल कन्वर्ट इनटू रेड एंड इट विल ट्राई टू से नो प्लीज डोंट गो फॉर इट बिकॉज otherwise you will be overproducing and then you will be getting relatively less जो है money for your efforts for your produce. So the system will help him to decide कि दूसरे के हिसाब से उसे बोलना चाहिए। क्वालिटी ऑफ द सीड हमारे ये स्टार्टअप लेके उसके घर पे डिलीवर करेंगे और उससे पैसे भी नहीं मांगेंगे, बल्कि उसको मौका देंगे कि जो व्यक्ति डिलीवरी करने जा रहा है उसने अच्छे ढंग से जो है ना उसे नमस्कार किया कि नहीं किया, उसको जो है जहां पे जो है वो बीज रखना था उसको दिखा के और समझा के उस जगह पे बीज रखा कि नहीं रखा, लौटते वक्त उसने उसको नमस्कार किया कि नहीं किया, और यदि दरवाजा खुला हुआ है तो दरवाजा बंद करके आया कि नहीं आया है। वी आर टॉकिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ द बिहेवियर, दैट काइंड ऑफ द कैप्चरिंग वुड बी डन। मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जब जो है ना हम सिटीजन और ऐप की बात कर रहे हैं जहाँ से कि वो रिपोर्ट कर रहा है FIR का, वहां पे बहुत सारा जो है सजेशन का सिस्टम रखा है। दैट पर्सन वुड बी इन पोजीशन टू एवेल्युएट द वर्क की क्वालिटी क्या है, पुलिस की क्वालिटी क्या है, वॉलंटियर की क्वालिटी क्या है। सो एवरीबडी विल बी हैविंग ए ग्रेड बेस्ड ऑन दैट अप्रिसिएशन एंड he can give the suggestion, he can give the feedback, he can, so that kind of the power has been given even in that security app also. Now the similar जो है ना power we want to give to the each segment of the consumer, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली सर्विस सेक्टर में, क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो भी बहुत खराब है और रिलायबिलिटी बहुत खराब है। आप सहमत होंगे कि वो आपके सामने व्यक्ति काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, वो फलाना है, और वो कह रहा है कि साहब बस मैं रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। आपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेके रखी है कि वो व्यक्ति आके हमारा काम करेगा, और वो दुष्ट जो है ना नहीं पहुंच रहा। स्पेशली जो लो लेवल के फंक्शनरीज हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 1 अबाउट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, नंबर 2 अबाउट देयर बिहेवियर, अबाउट देयर रिलायबिलिटी। सो इवन सर्विस सेक्टर्स के लिए भी स्टार्टअप्स आए, हम जो है ना लोगों को जो है उसमें रिक्रूट करें, हम जो है हमारे स्टार्टअप, और हमारे स्टार्टअप ही जो है ना उसको जो है वो बिहेवियर ट्रेनिंग दें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें, एंड लेट द कंज्यूमर शुड गेट द बेस्ट जो है आउटपुट। तो अब उसको अपने बीज पहुंचा दिया, बीज भी सबसे सस्ती कीमत पे, और वो भी बिना पैसे चार्ज किए। पैसे कब लेंगे? प्रोड्यूस के साथ, ठीक है ना। तो किसान को जो अभी कहीं से कर्ज लेने की जरूरत है, फिर क्या जरूरत है कर्ज लेने की, राइट? और जो मनी आपका ऊपर जो जा रहा है दैट विल बी फैक्टर्ड इन द प्राइस, सो वो स्टार्टअप के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं होगा, राइट? देन जो है यदि उसको टिलिंग के लिए ट्रैक्टर चाहिए तो वो एक स्टार्टअप जो है उन्हीं के ट्रैक्टर्स को जो है ना ऑनर्स के ट्रैक्टर्स को एक ऑनरशिप क्लब के माध्यम से इट विल बी इन पोजीशन टू प्रोवाइड those appliances, those tools, those machinery which are required for by the farmer। और अभी जो फार्मर है जिसके पास ये सब चीजें हैं
वो अपने यूज के बाद बाकी समय वो खड़ी रहती हैं। तो ये स्टार्टअप जो है उनके लिए, उनकी कैपिटल के लिए एक रनिंग EMI बन जाएंगे। सो फार्मर्स जिनके पास रिसोर्सेस हैं, उनके रिसोर्सेस उनके काम के बाद जो है एक अर्निंग के माध्यम बन जाएंगे, एंड इन द प्रोसेस एन नंबर ऑफ द पीपल विल बी एम्प्लॉयड। जिनको ड्राइवर को, जो ड्राइवर है वो एम्प्लॉय होगा, मैकेनिक एम्प्लॉय, नंबर ऑफ द पीपल विल बी एम्प्लॉयड। हमारे पास हाथ कम पड़ जाएंगे, इतने जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये स्टार्टअप पैदा करेंगे। नाउ फर्टिलाइजर पे आ जाए तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है बन के वो भी इसी तरीके से डिलीवर होगा। पेस्टिसाइड है तो वो भी डिलीवर हो जाएगा। यदि किसान को सामर्थ्य नहीं है तो उसका छिड़काव करने वाला भी पहुंच जाएगा। और हर चीज जो है एट द मोस्ट रीजनेबल, मोस्ट जेन्युइन एंड ऑर्गेनिक। हम जो है केमिकल चीजों से थोड़ा सा दूर जाएंगे। यदि हम केमिकल चीजों से दूर जाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। अभी हम केमिकल से इतने अंदर घुस गए हैं कि गाय वाला जो है वो वैक्सीन लगा रहा है, मुर्गी वाला मुर्गी को वैक्सीन लगा रहा है, फल बेचने वाला फल को भी इंजेक्शन लगा रहा है। तो चारों तरफ हम केमिकल से गिर गए हैं, और बची खुची कसर हमारे डॉक्टर ने भी पूरी कर दी है। वो आपको इतनी सारी मेडिसिन लिख देते हैं, हर जगह कहते हैं कि साहब ये तो ऑटोनोमस डिजीज है, तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो हम सिम्टम्स, आपके यदि 5 सिम्टम है तो 5 उन्होंने मेडिसिन परोस दी आपको। यदि आपको खांसी है तो उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी है। मैं इस बात को कई बार दोहराता हूं कि जहां से ये एलोपैथी आई है वहां तो इतनी आसानी से एलोपैथिक नहीं देते हैं। फिर इंडियन डॉक्टर क्यों कहते हैं कि साहब हमारे प्रोटोकॉल में लिखा है कि हम आपको एंटीबायोटिक देंगे। सो मुझे लगता है कि हमें इस रट से भी बाहर निकलना पड़ेगा। अब जो है फिर फसल पैदा हो गई और फसल बेचने की बारी हुई है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाउ रूल्स को रिलैक्स कर दिया है। तो few startup they will pick up produce and will get the best price for the farmer। अभी अपन ने एक सेगमेंट की बात कही है, दिस विल बी हैपनिंग फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट। यदि हम इसको मिल्क वाले सेक्टर में ले जाएं तो देन देयर विल बी एन नंबर ऑफ द थिंग्स व्हिच विल बी रिलेटेड टू दैट। सो इट विल बी टेकिंग a lot of time, but you can visualize that each sector would be offering a number of opportunity for the start। Probably we have to identify those opportunity and we have to work for that। तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीजें रहेंगी, that is the one aspect of the but each segment, each aspect would be creating opportunity for startups। those opportunity has to be identified। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने मिल्क रिच इंडिया की बात करें थोड़ा देर, तो हमें कितना मिल्क चाहिए, तो हम कहेंगे कि हम मिल्क की बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि माइथोलॉजिकली कहते हैं कि गाय के अंग में हर देवता विराजमान है। यदि आपने वो फोटो देखा है कैलेंडर जिसमें कि देवताओं को दिखाया गया कि कौन किस भाग में विराजित है। जब ये अलॉटमेंट हो रहा था उसमें लक्ष्मी जी ईगो में थोड़ी सी देर हो गई कि मैं क्यों जाऊं, लेकिन जब उन्होंने बाद में समझ में आया कि सभी देवता पहुंच गए हैं तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये ठीक बात रही है, आई शुड आल्सो रीच। तो देन जो है लक्ष्मी जी पहुंची तो गाय माता ने कहा कि माता अब तो सब जगह भर गई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। सो फाइनली शी हैज टू सेटल फॉर द गोबर। आई फील कि जो माइथोलॉजी में गोबर में लक्ष्मी का निवास बताया गया है, देयर मस्ट बी सम ग्रेट वैल्यू इन दैट गोबर। तो यदि हम गोबर की वैल्यूज को एनालाइज करने लग जाएंगे तो देन जो है आई थिंक रियली धन की वर्षा होगी। और जो अभी हमारे जो एनिमल्स हैं जब वो दूध नहीं देते हैं वो उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं, फिर हम उपेक्षा के पात्र नहीं बनेंगे। फिर हम उनके गोबर को भी देखेंगे, हम उनके जो है ना एनिमल पावर को भी देखेंगे, हम उनको बाहर भी ले जाएंगे, हम उनको जो है मंत्रों के उच्चारण से भी जो है ना उनको करेंगे, उनको हवन भी देंगे, उनको बाहर चराने के लिए भी ले जाएंगे। एंड चूंकि वहीं पे जो है ना सभी तरीके के न्यूट्रिशियस प्लांट भी लगाए जाएंगे, चाहे वो जो है फल के प्लांट्स हो चाहे वो हर्ब के प्लांट हो, तो ना केवल चारा बल्कि बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड उसको दिया जाएगा। तो गाय को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, मंत्रों का भी जो ना उच्चारण मिल रहा है और हवन का भी हो रहा है। तो कुल मिला के जो वैदिक जो इफेक्ट है वो आएगा। और जो हमारी गाय माता का दूध जो अमृत तुल्य है, जो अल्फा 2 कैटेगरी का होता है, which is very very good for the human health, that would be available।
तो इसके हर सेक्टर में जितनी भी चीजें अपन कह रहे हैं, एक एक स्टार्टअप के लिए जो जगह इसमें है, और फिर ये स्टार्टअप का स्प्रेड विल बी होल कंट्री। और एंड इसमें देखिए देयर इज एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, बिकॉज ये सब चीजें हम शहर में क्यों करें, ये हम उसके बगल में जो फॉरेस्ट एरिया है उसको उस एरिया में करें, और हम उसको ट्राइबल्स को, वुमेन्स को, उनका एम्पावरमेंट करें, उनको उसकी ऑनरशिप, टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें हम लेके पहुंचे वहां पे। तो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ काउ जो है, ये खरीदने की जो है ना, वो भी उनको नहीं करने की जरूरत है। उसको वी कैन कैलकुलेट, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और बाकी सब चीजों को यूज करते हुए वी कैन क्रिएट इनफ नंबर ऑफ जो है काउज ओवर द पीरियड, दिस शुड बी मेड अवेलेबल टू देम। और जैसा कि अपन ने फार्मर से कहा कि फार्मर से पैसे नहीं लेंगे, ऐसा किसी से पैसे नहीं लेना है। लेट दैट बी इन्वेस्टमेंट, दिस शुड कम विद द रिटर्न। तो जब उसके ऊपर रिटर्न आएगा, उस समय जो है ना वो ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिडक्शन फ्रॉम देयर। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम अपराधी से कह रहे हैं कि हम आपको अपराध नहीं करने देंगे, तो हमें हर सेगमेंट से कहना है कि हम आपको भी नेगेटिव काम नहीं करने देंगे। जैसे पहले अपन ने कहा है कि फरियादी झूठी रिपोर्ट नहीं कर सकता है, यदि झूठी रिपोर्ट करेगा तो 211 182 में से बंद करेंगे, तो वो दूध में पानी नहीं मिला सकता है। उसके लिए स्पेशली डिजाइन टैंकर्स जो है हमारे स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे, जिसमें कि रियल टाइम बेसिस में IoT डिवाइस वुड बी रीडिंग द वैल्यूज। Those tankers will be fitted with the GPS and other kind of the system, जहां पे जितना दूध डाला जाएगा वो वहां पे पहुंचा जाएगा, और उसकी प्रोसेसिंग भी वहीं पे होगी। तो हम यहाँ पे गाय के जो है ना गोबर को भी पा रहे हैं, और उसका जो है ना सानिध्य भी पा रहे हैं, गाय माता की सेवा का लाभ भी पा रहे हैं, और उसको जो है फीड से लेके हर चीज में हम एक पॉजिटिविटी दे पा रहे हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ कि जो उसका प्रोसेस मिल्क भी है, वो मिल्क भी जो है उसमें कोई अडल्ट्रेशन का स्कोप नहीं रहेगा, और उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहां पे रहेंगे जो कि स्टार्टअप उनको लेके आए। और उस तरीके से वी वुड बी जो है ना क्रिएटिंग सो मच वेल्थ की प्रॉब्ली प्रोसेस जो है ना फूड मे बी प्रोसेस जो है ना मिल्क प्रोडक्ट्स दैट विल बी मोर देन आवर रिक्वायरमेंट। तो हम उसको ग्लोबल लेवल पे भी सर्व करने की और जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें। यहाँ पे हमें जब हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हमें नॉन एडिटिव केमिकल फ्री प्रिजर्वेशन की बात करना पड़ेगी। तो कैन बी जो ना, चूंकि यदि हम उसको वैक्यूम बेस्ड प्रिजर्वेशन दे दें, तो हमें उस तरीके की बात करना पड़ेगी जहां पे कि एयर ही नहीं रहेगी, तो वो बैक्टीरिया डेवलप होने के लिए उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा। नाउ यदि हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, और प्रिजर्वेटिव डालने से यदि वो चीज खराब नहीं हो रही है, तो वो प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज जरूर पैदा करते होंगे। मेरे ख्याल से इसमें स्टडी की जरूरत है, जो यदि हम स्टडी करेंगे तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारी स्टडीज ऑलरेडी हुई हो जिसकी हमें जानकारी नहीं है। जब हम उसको उस फील्ड में घुसेंगे तो वो जानकारी निकल के सामने आएगी। तो इस तरीके से ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ऑफ द स्टार्टअप वुड बी जनरेटेड। नाउ लेट्स गो टू द बैक टू द आवर इंस्टीट्यूशन कि लेट्स क्रिएट ए कल्चर ऑफ इनोवेशंस। तो वहां पे चाहे वो क्राइम फ्री भारत से रिलेटेड जो है ना चीजें हो, या अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के रिलेटेड चीजें हो, हम उन सब के लिए जो है एंड टू एंड स्टार्टअप्स को कंसीव करें, उनको क्रिएट करें, और पब्लिक को जो है विदाउट इनकन्वीनियंस द बेस्ट क्वालिटी हम जो है ना चीजों को अवेलेबल कराएं, जिसमें प्रोफेशनलिज्म हो, जिसमें क्वालिटी ऑफ डिलीवरी हो, और ऑन द टॉप ऑफ इट देयर शुड बी वैल्यूज एंड देयर शुड बी बिहेवियरल कर्सी आल्सो। तो जो अभी नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन जो हम लोग ज्वालामुखी बन रहे हैं, वो इन सब छोटे छोटे नेगेटिव एक्सपीरियंस से भी हम ज्वालामुखी बन रहे हैं। तो वो जब हमारे पास वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, हमारे पास जब क्रिमिनल भी नहीं होंगे, जब हमारे दूध गाय जो है ना
दूध के साथ साथ जो है ना धन की भी जो है ना नदियां बह रही होंगी। जब भारत का हर व्यक्ति धनी होगा तो हमारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण या जो नेगेटिव प्रेशर्स के कारण जो हम वो बनते जा रहे हैं, बेसिकली व्हाट वी शुड से कि हम जो ज्वालामुखी बनते जा रहे हैं, संभवतः हमें ज्वालामुखी बनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वी विल बी मोर रिलैक्स, probably we will be getting enough time, क्योंकि we feel कि even जो लेबरर है उसके लिए वो टूल्स आइडेंटिफाई किए जाएं जिससे कि उसको जो मैनुअल लेबर ज्यादा करना पड़ रहा है वो कम करना पड़े, and he should be in position to do a quality job in the less time, and everybody should be saving some time for himself and for spiritualism also. यदि हम उस तरीके की स्पिरिचुअलिज्म रिवाइव कर पाएंगे तो it will be transforming. हमारे ना बीपी होंगे ना हमको जो ना डायबिटीज होगी, प्रॉब्ली यहाँ पे हमारे खान पान में फर्क पड़ेगा, वहां पे हमारी सोच में फर्क पड़ेगा, वहां पे हमारी चिंताओं में फर्क पड़ेगा और एक हम नए भारत का जो है ना निर्माण कर पाएंगे। अब ये भारत का नया निर्माण कौन करेगा? तो ये निर्माण आप करेंगे। वी हैव कंसीव्ड 11 भारत। तो क्राइम फ्री भारत है, उसमें जो है ना मिल्क रिच भारत है, ग्रीन हर्बल न्यूट्रिशन रिच मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत है, उसमें जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत है। तो जो अभी अपन ढेर सारी बात कर रहे थे कि वेरियस स्टार्टअप से हम जो है बहुत सारे जॉब पैदा करें। से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कारें हैं, हमारे पास जो चीजें हैं, हम जो एक स्टेटस सिंबल के साथ में जो है ना हम रखते हैं, जिसको हमें चलाने में भी दिक्कत होती है, जिसको मेंटेन करने में भी दिक्कत होती है। यदि हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और ये सब जो है ना एक स्टार्टअप के पास रहते हैं, और देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑनर्स क्लब आल्सो। नियरेस्ट व्यक्ति जो है ना जब ऑनर के पास पहुंचता है, सैल्यूट करे और एक रोज भी साथ में दे, तो probably we are enjoying the status, we are enjoying convenience, and at the same time हमारी asset will be earning money also. And that is not only true for the car, that will be true for the tractor, trolley, that will be true for the JCBs, all kind of the earth mover. And इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि अभी जिसके पास रिसोर्स हैं वही केवल डिलीवरी कर पा रहा है। फिर हमारे यंग बच्चे भी जो है ना दे कैन टेक द कॉन्ट्रैक्टशिप, बिकॉज दे कैन जो रिसोर्स और सर्विसेज ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। जैसे बिजली के खेत में हमने क्या किया कि भाई एक कैरियर है और एक बिजली का प्रोड्यूस करने वाला को बेचने वाला है। तो एक तरीके से 2-3 सेगमेंट अपन कर, अब वही सेगमेंट अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी है that will be owned by the startup, not owned by, they will be custodian by, or they will be in custody of the startup. Startup will ensure the money to the people those who are owner, and it will ensure the right quality of services. And in the process वो बच्चे, वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो इस रिसोर्सेज का यूज करके सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप खोल पाएंगे और बिना जो है ना पैसा खर्च किए they would be in position to provide quality job, and the turnover will be very high. चूंकि जो है वॉलंटियर ऐप जो है ना we presume it will be having access to the all population, hence ये ऐप जो है ना उनको बिजनेस लगा, तो उसको बिजनेस के लिए भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और we intend to make few modules, तो आपको स्टार्टअप खड़ा करने के लिए भी लीगल से लेके हर फैसिलिटेशन के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, हाउ वी कैन रियली क्रिएट ए फैसिलिटेशन मैकेनिज्म फॉर यू। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपन क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहे हैं, उसी जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम आपके जो हाउ स्मार्टली वी कैन क्रिएट ए स्टार्टअप, दैट कैन आल्सो बी डन, हाउ स्मार्टली द फाइनेंसेस शुड बी अरेंज्ड फॉर द स्टार्टअप। तो स्टार्टअप वाले को सिर्फ आइडिया की चिंता करना है, उसकी टेक्नोलॉजी बनाने की चिंता करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड be taken by the other startup. So then we will say the startup support system. So there will be many startups to support startup. That kind of the cyclic thinking we have to bring. Now the engine will be youth. Engine will be university. Engine would be academic institutions.
And then there should be partnership of the visionaries, there should be partnership of the industry, there is partnership of everybody, and the money could be arranged for that purpose. जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, चीफ इनोवेशन, बात कभी नहीं भूलता हूँ, यही बात delivering convocation ceremony, and he told me that he some 13 point. Excuse me, sir, you are not audible. Vishek? Hello, sorry to interrupt you, sir, but your voice is not audible. Can you please call him? He may not be aware about it. Yeah. Can you please check? Yeah, sure, sir. Gupta sir, you are not audible. Hello? Gupta sir. हेलो गुप्ता सर, आप ऑडिबल नहीं है. हेलो, No audio, sir. You are not audible. Sir, you are not audible. Abhishek, please call him and inform. Yeah, sir. I am calling him, but he rejected my call just now. That's it. Okay. Wait a second. I'll call again. audible sir. Yeah, sir. He'll join once again. He's trying. Okay. There's some network connectivity issue. Okay, fine. Sir, you are muted. Kindly unmute yourself and then speak. Okay. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. How long I have missed basically? How Sir, long I have not basically, audible? 4 to 5 minutes. Oh, that is a. So I suggest probably you have to do some kind of. And probably you could have given some signal so that I could have really understood that because I was having some doubt whether. So I thought anyway. So we were talking very important things about how this chemistry should work so that a student can really go for the right kind of the creativity. That right kind of the creativity is really very, very important, and we need to provide ecosystem. So Honorable Prime Minister has provided ecosystem for by having a Smart India Hackathon, but I feel, and even Ministry MHRD also supporting in incubation centers. I think taking this support, we should create a very strong
support system in our institutions and in our university. Now जो है, the teacher should move from guide to team lead, because now time has gone when you can work with a relatively sitting from a distance. So time has come, जैसा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होता है, बाकी जगह होता है कि जो प्रोफेसर्स हैं they become the integral part of the team, and जब जो आउटपुट होता है उसमें भी they get the revenue stream. तो जो आउटपुट है उसमें let the student should get the revenue stream, let the mentor should get revenue stream, even the teacher should get revenue stream, and the student should get revenue stream, and that kind of a ecosystem need to be provided. अभी क्या होता है कि चूंकि क्लाउड कंप्यूटिंग और उस तरीके का एनवायरमेंटल सपोर्ट नहीं है, तो हमें बहुत पावरफुल जो है ना सिस्टम चाहिए रहता है, हमें इंटरनेट की ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए रहती है, हमें बहुत सारे टूल्स चाहिए रहते हैं. यदि वही हम क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरमेंट और वो उसके सभी टूल दे दें, तो नाउ जो है विद द लेसर स्किल सेट आवर स्टूडेंट वुड बी डू इन पोजीशन टू डू वेरी वेरी स्मार्ट. तो जो अपन वाले से कह रहे हैं कि विद द लेस स्किल सेट दे विल बी डूइंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. Hello. Yeah, Yes, please please. go ahead with the questions. Yeah, sure. Thank you, sir. So, sir, I would like to ask some of the questions which we came across this great session. So the first question is, at what level crime-free Bharat will work and how will students help in achieving it? ग्रेट. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. Amit sir, sir is not able to join because it's asking for a password. 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इससे कहीं ज्यादा जो है बहुत सारे और मॉड्यूल जो है ना दे आर अंडर मैन्युफैक्चरिंग. ये तो वो मॉड्यूल्स थे जिनको हमने सोचा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ले जाएं. अदरवाइज 53 यूनिवर्सिटीज आपको मिला के नाउ दे आर लुकिंग फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशंस. तो इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी रखी गई है, जो कि भी आपको शायद कोई एक फॉर्म जो है ना दिया होगा या देने वाले होंगे, एंड देन दे विल कैप्चर कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आगे आप किस एरिया में अपनी स्किल होन करना चाहते हैं. फिर जहां पे आप स्किल होन करना चाहते हैं उस हिसाब से 4 लोगों का ग्रुप बनेगा और आपको एक उसी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसी एरिया का जिसकी होने की इच्छा है, ऐसे टीम लीड को अलॉट किया जाएगा. एंड देन जो है that will come to us and then we will be allotting gaps है या जहां पे हम reinforce करना चाहते हैं वो मॉड्यूल अलॉट कर दिए जाएंगे. एंड उन मॉड्यूल के ऊपर will be first briefing by me on the concept and that will be the live so that it will be available to the larger people can be benefited out of it. Then जो है there will be literature survey, there will be research paper survey, then there will be a concept note will be prepared कि how the latest technology, the best technology, and a comparative statement will be prepared, and then it will be decided what will be the best suitable technology for our module, and then that technology then developed, and then thereafter जो हार्ड सॉफ्टवेयर है तो उसका वो डेवलप होगा, उसकी डीबगिंग होगी, उसका जो है ना टेस्टिंग होगी. If it is hardware, then we have to do the
type, and then it will go the physical and mechanical testing, and then process it, so it will go for the some kind of the auditing, and then how we will be creating the first person, then we will go for the second, third options also. So this will be a journey where we will be refining for ourselves. तो जो हमारे solution है वो कभी obsolete नहीं होंगे, right? अब आपने ये महसूस किया होगा कि इस पूरी जर्नी में आप लोगों का रोल सबसे है, राइट? हम आपको जो है ना एक विजन के तहत आइडिया दे रहे हैं, फिर हम आपको ऑल थ्रू जो है वी आर गाइडिंग यू, बिकॉज इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ डिवाइजिंग सॉल्यूशंस, इट इज डिवाइजिंग सॉल्यूशन विच शुड फिट इन विद द लार्जर विजन. तो लार्जर विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज जो है सॉल्यूशन में जो ना वो गैप आ जाएंगे और उन गैप्स को लोग एक्सप्लॉइट कर लेंगे. सो वी विल नॉट बी लीविंग दोज गैप्स. कोई प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं होगी. एट द सेम टाइम एवरीबडी विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे स्टूडेंट हो, एवरीबडी विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट. एंड आई फील नाउ probably you must be getting that answer, how you would be contributing. That will be saying it is the academic institutions, their creative environment supported with industries, that journey will be completed. Because हम उसमें जर्नी में जो कहीं जहाँ कहीं संभव है वहाँ पे हम इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनके मेंटर्स को भी लेना चाहते हैं. We are going for the MOU with the industries also, so that हम आपको क्वालिटी जो है गाइडेंस दे पाए. तो कहीं जरूरत पड़ती है तो हम अपने साथ अकेले हम नहीं आते हैं, हम अपने साथ बैगेज ऑफ गाइड लेके आते हैं, जो कि मेरे साथ जो है ना आपको टेक्निकल ब्रीफिंग, जैसे अभी वो चल रहा है, यदि आपने कुछ वीडियो देखे होंगे तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट ब्रीफ कर रहा है, साइबर जो है ना एक्सपर्ट ब्रीफ है, फॉरेंसिक मेडिसिन वाला कर रहा है. अभी वो सीरीज जो है बिकॉज ऑफ माय बिजीनेस उसमें थोड़ा सा ब्रेक हुआ है. तो इससे एन नंबर ऑफ विल बी coming and helping you so that you find your solution. And आपका solution जब तक कि not qualifying and consistency with the vision, it will not be permitted to take a final step. तो आप ये देखेंगे जब आपका बीच में periodic review होगा, then we will give our input. नहीं यहाँ पे आप slip मार रहे हैं. Now need of alignment. As you must have even seen that alignment when we were mentoring you during Smart India Hackathon. Is that correct? Yes. तो मैथिली आपको जो है ना अपनी बात का जवाब, पूर्वा आपको अपनी बात का जवाब मिला? Yes, sir. Okay, great. Okay, so the next question is, will this digitalization help in reducing crime rate to a specific level? देखिए, हम पहले क्राइम की बात ना करें, रेट की बात ना करें. लेट द क्राइम, बेसिकली अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम कॉग्निजेंस के माध्यम से क्राइम रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? सो हम कह रहे हैं कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है और आप लॉस्ट की रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, आप जो है ना लिखा दीजिए, आपको जो है ना एक रोजनामा साना मिल जाएगा, उससे आपको सिम मिल जाएगी. लेकिन जब आपका चोरी गया है तो हम चोरी की रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है. तो हमारा जो वोट है वो वर्किंग के फेवर में जा रहा है, वो नॉन रजिस्ट्रेशन के फेवर में जा रहा है. तो सबसे पहले अभी अपन को क्राइम रेट की बात ही नहीं करना चाहिए. लेट द क्राइम रेट शुड गो बाय द 3 टाइम 4 टाइम, बिकॉज आई एम हैविंग अप्रेंशन. जब भी मैं अपने साथियों से पूछता हूं कि जब हम फ्री और फेयर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्राइम कितना बढ़ेगा, तो हम लोग की जो गट फीलिंग है, बिकॉज नोबडी नोज कि कितना क्राइम रजिस्टर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी फीलिंग ये कहती है कि क्राइम जो है ना विल राइज बाय 3 टाइम्स, मतलब 300% इंक्रीज ऑफ क्राइम होगा. लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पुलिस के ऊपर भी बर्डन नहीं हुआ, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ द डीबर्डनिंग एंड डिस्ट्रेसिंग ऑफ द पुलिस, नंबर 1. नंबर 2, हम उसको सभी तरीके के सपोर्ट सिस्टम लेके जा रहे हैं. नंबर 2, हम एक केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और 100 केस डिटेक्ट होंगे, उनके एविडेंस लेके हम पहुंच पाएंगे. हम उन केसेस को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कि रिपोर्ट नहीं किए गए हैं या रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, और उसके पहले हमको मालूम है कि क्राइम हुआ है और किसने किया है. तो हम उनका जो है ऐसे क्राइम को रजिस्ट्रेशन के भी पीछे पड़ेंगे जो हमने अपने एनालिटिक्स से निकाल लिया है कि हाँ क्राइम हुआ है, लेकिन फिजिकली वहां कोई क्राइम रिपोर्टेड नहीं है. तो प्रॉब्ली वी विल अप्रोच पब्लिक कि इस जगह पे इस तरीके का कोई क्राइम हुआ है, विक्टिम में प्लीज कम फॉरवर्ड. हालांकि कोर्ट में हमें जाके ये भी सिद्ध करना पड़ेगा
कि विक्टिम ने उस समय रिपोर्ट क्यों नहीं की. But anyway, we will convince court that is not an issue because we then know the criminal, we know the property, we will motion to recover the property. So detection will be very high. जब हमने ऐसे बहुत सारे एसपी गुना जो है ना लगाए और वहां पे हमने कहा कि कोई वर्किंग ऑफ क्राइम नहीं हो, क्राइम रोज 400%, 4 टाइम, और हमारा डिटेक्शन था इट वाज क्लोज टू 97 and 98%. और के पास ऐसी ढेर सारी रिकवर्ड प्रॉपर्टी थी जिसका कोई क्लेमेंट नहीं था. उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम आइडेंटिफाई कर ले कि वो क्राइम कहाँ का है. अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्राइम कहाँ का है. बट हमारे थानों में मोटर्स भरी पड़ी हुई थी. हमारा 100% डिटेक्शन होने के बाद भी वी वर नॉट हैविंग द क्राइम टू फिक्स दोज मोटर्स. So that is I am sharing my own practical experience of district Guna. तो वैसा होगा, but now we will be relatively in a better position, and that too largely on account of a student like you who created such a wonderful modules, and now we will be further taking it forward. तो बेटे क्राइम रेट की चिंता नहीं पालना है, क्राइम रहेगा, बट बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम जो है ना यदि एक केस को पकड़ेंगे तो हम उसको 100 में एक्सपांड करने की स्थिति में है. तो हम 100% केसेस को तो डिटेक्ट कर ही लेंगे, इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट. एक केस को डिटेक्ट करेंगे एंड दैट विल बी एक्सपांडेड इनटू द many cases, and then we will be in position to get the evidences in those cases also, and we would be in position to fix them also. जैसे जो है पीपल आइडेंटिफाई होते जाएंगे और उनके ऊपर आपका बैकएंड विजिल बन रहा है, क्रिमिनल क्लस्टर्स पे जो है ना कैप्चरिंग हो रही है, तो देयर कैपेसिटी टू कमिट क्राइम विल बी मिनिमाइज्ड बाय वेरी ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि आप उनको अपराध करने के पहले पकड़ने की स्थिति में होंगे. नाउ दैट काइंड ऑफ द कैपेबिलिटी में तो हमें क्राइम रेट की चिंता क्यों पालना है? Whether my answer is convincing to you? Yes, sir. Okay. So the next question is from Rajat Khairi. So he's asking, how can the fellow students understand the problems faced in different sectors, and how can we make them familiar with the problem solution and the approach? Please repeat your question. It's a very good question. How can the student understand the problems faced in different sectors and make them familiar with their solutions and their approach? Basically, there lies our role. तो आपके तो ग्रुप बना, आपसे तो किसी ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको परोसना है, राइट. हम आपको जो है ना उसमें जैसे आप देखेंगे कि जो हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली में ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यदि आपको बारीकी से पढ़े तो इट इज ए सॉल्यूशन स्टेटमेंट. डू यू एग्री विद दिस? आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, इट वाज नॉट ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट वाज ए सॉल्यूशन स्टेटमेंट. डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. so we will be in position to give you the problem statement, and we would be in position to give you the solution statement, and we will be in position to guide you in the journey. आप लोगों को इंडिपेंडेंटली जो है उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जहां हमें लगेगा कि कुछ एक्सप्लोरेशन करना है, then we will create few exploration for that purpose. और उस एक्सप्लोरेशन में हम जो है टेक्निकल बच्चों की बजाय हम उसमें सोशल साइंस के बच्चों को यूज करेंगे, मैनेजमेंट के बच्चों को यूज करेंगे, बिकॉज प्रोबब्ली दे माइट बी हैविंग लिटिल डिफरेंट माइंडसेट. दैट माइंडसेट में बी यूज्ड, और जरूरत होगी तो एक मल्टीपल जो है ना डिसिप्लिन की टीम क्रिएट की जाएगी, और वो टीम. Okay, sir. Now I request Nidhi ma'am to ask the concerned question. Hello, Nidhi ma'am.
Okay. Do we have any other question? Sir, ma'am wants to ask question. Yeah, we'll allow her, but Yeah. time being, we should ask. I think timing is because of various reasons. Yeah, Timing is going out of hand. Basically, I agree with you. Vishik, I can see Nidhi ma'am under attendees. Can you add her to panel list? I think she's not able to unmute her mic. Yeah, she's an analyst now. Yes. Any question in YouTube comment box? Am I audible? Yes, Yeah, ma'am. am I audible? Okay. Yes, ma'am. नमस्कार सर, मैं निधि शर्मा बोल रही हूँ और ये सेशन अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरे फादर भी फॉरेंसिक साइंस लैब में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर थे और डेफिनेटली वो इस क्राइम फील्ड और इसमें सब में बहुत काम कर चुके हैं। तो ही यूज्ड टू गो फॉर द एविडेंस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन भी है कि जो भी एविडेंस है, गवर्नमेंट एविडेंस है या कोई भी एविडेंस है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही एविडेंस दे? क्योंकि ऐसा देखा गया है इंडिया में कि जब भी कोई क्राइम होता है और कोई उसका प्रूफ देता है, कोई एविडेंस देता है, तो उसकी जान ज्यादा खतरा होता है और इनफैक्ट वो एविडेंस देने जाए उससे पहले ही क्या होता है कि उसको भी बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं जो भी दूसरी साइड के लोग होते हैं। तो क्या इस तरह का कोई प्रोविजन है जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या थ्रू एनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप वी कैन टेक द एविडेंस ऑफ दैट गवर्नमेंट एविडेंस और एनी अदर? यदि आपने बारीकी से सुना होता निधि जी तो आप शायद एक क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब अपन ने कहा कि हम कोर्ट को मदद करेंगे तो कोर्ट को अपन ने पहला मदद ये कहा था कि हम आपको समन्स वारंट और प्रोसेसेस जारी करने में मदद करेंगे। सेकंड उनसे कहा था कि आपके जो समन वारंट की तामीली में मदद करेंगे, मेकिंग यूज ऑफ अवर जो है रिसोर्स बेस ऑफ द वॉलंटियर्स। फिर अपन ने जो सेकंड बात की, इफ यू रिकॉल, we said कि we are coming out with a trial system. हम उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस इज द वे वी आर इंटरेक्टिंग, बट इट विल बी वेरी स्मार्ट, लीगली it will be taking care of all nuances so that that even the video trial is to stand the scrutiny of law. So rather it will become it will be a superior in many way. One of the dimension जो है ना, it has been told by you, because the person need not to जो है basically he need not to travel and probably from his place he would be in position to divorce for his statement. अब इसमें एक दूसरी डायमेंशन भी है, आप उससे डरते हैं जो कि आपको डराने की स्थिति में होता है। आज का सिस्टम जो है ना, लोगों को आपको डराने लायक पहले बना देता है। वो आपको पहले विकास दुबे बनने देता है, फिर विकास दुबे का आतंक होता है। हम जो है सिस्टम को विकास दुबे बनने ही नहीं देंगे। सिस्टम विकास दुबे को पहले से आइडेंटिफाई करेंगे और उनको समय समय पर जो है ना निपटाते जाएंगे। तो विकास दुबे नहीं बनेंगे, इस तरह से कोई भय करने की स्थिति में नहीं रहेगा। एंड एट द सेम टाइम जब जो है हमने उसमें कहा था कि वो विटनेस की आइडेंटिटी को प्रूव करेगा, फिर जो है ना विटनेस किसी एंड्योरेंस उसमें नहीं है, किसी भय में नहीं है, इसको प्रोटोकॉल पहले सेट करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा विटनेस किसी के भय में है तो सिस्टम विल डिक्लेयर कि ही इज नॉट सुटेबल फॉर गिविंग स्टेटमेंट। तो कई चेक एंड बैलेंसेस से नंबर 1 पहले हम विकास दुबे पैदा नहीं होने देंगे, नंबर 2 विकास दुबे जो है समय समय पर निपटाए जाएंगे, नंबर 3 देयर विल बी प्रोटोकॉल टू टेक केयर ऑफ द सिनेरियो। अभी प्रेजेंट सिस्टम में यू राइटली सेड कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। आप बहुत सारी मूवी में देखते हैं कि वो विटनेस को जो है ना कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। रियल लाइफ में आप देखते हैं कि
रास्ते में और जो है ना कोर्ट के स्टेयर केस में, कोर्ट के किनारों में धमकाने का काम किया जाता है। और कई बार तो धमकाने का काम जो है लॉयर विटनेस बॉक्स में बैठे है और उसको अलग अलग तरीके से जो है ना भय कारित करना। अभी एक केस में डीआईजी मैंने इंक्वायरी की थी, एज ए डीजी मेरा जो है बयान 4 दिन में तक चला और जो डिफेंस लॉयर थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे भी थ्रेट में लाने की कोशिश, मैंने उनको समझाया कि उनका थ्रेट काम करने वाला नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखिए ये डायनामिक्स तो चलती ही रहेगी, इन डायनामिक्स को हमें हैंडल करना पड़ेगा एंड एज वी विल बी प्रोसीडिंग हमें उसमें सफलता मिलेगी। बट दीज डायमेंशंस हैव बीन अटेंडेड टू, उन पे ध्यान है और उन पे जो है ना चल रहा है। तो वो डायमेंशन जो है ना हमारे जस्टिस सिस्टम को जो अभी प्रभावित कर रही हैं, आगे चल के शायद उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। नंबर वन, लोगों को उतना नहीं होने देंगे। नंबर टू है हमारे जो प्रोसेस है, they will be in position to, वो जो है ना उस तरीके का जो है एविडेंस जो है उनका एविडेंस नहीं होगा यदि वो भय में होंगे। सो प्रॉब्ली वो भय कारित करना जो है ना उसको जो है ना उतना सो आई होप जी मैं आपके जवाब का, आपका जवाब बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल है और उसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बट द ओवर द पीरियड आई एम कॉन्फिडेंट दैट जो डायमेंशंस आप बता रही हैं वो काफी हद तक हम कर पाएंगे। जरूर सर, जरूर सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, have we done with the question answer sessions? Are Yes, there any sir. more We are done with question and answer session. any of the participant want to ask anything more? Hello? Yes, sir. Yeah. Is there any participant wants to share anything or want to ask anything? So I am not getting any of the questions in chat box. Okay. We are done with question answer session, sir. We can Okay, proceed so further. now I request Professor N.D. Gaikwad sir to please conclude the session. Okay. First of all, I would like to thank Maithili Charan Gupta sir for sparing his valuable time and sharing his vision for the benefit of the citizens, for the benefit of institutes, for the benefit of students, for the benefit of industry, for the benefit of department, and by and large, the entire society. I would also like to thank MHRD Innovation Cell, actually the Smart India opportunity. So let me tell you that with MHRD Innovation Cell as an institutional innovation council, and we are following their national innovation startup policy. We are following their guidelines. And now this platform we have created for the students to come up with different problem statement, to come up with different innovations, and we are trying to create an ecosystem to find out a real-time solution for their problem statements. Now, what I would request is, now these two students, when they appear for the competitions, it is good, well appreciated. They will get their name and fame, but now they need to think beyond competitions. They need to think the real challenges of the real world, and as you rightly mentioned, how they can provide an optimized, I am saying that optimized and affordable end-to-end solution.
Okay, so these are the real challenges. Again, one of the participant, Ritik, has also mentioned about they have moved on to hackathon to startup. Now this is a very good thing, sir. They have moved on to hackathon to startup, but what we request is this is not enough. Now we need also to think about how we can uh, keep that startup, convert that startup into a profit making organization. Because you had already mentioned the cause of failures of startup for not providing the integrated solutions, but we want that they should form a good team, they should develop a good network and try to give the integrated solution which is expected from a startup. But the startup has so many challenges, so many problems. So there we are there to support you. Okay, if we cannot just work in isolation, we need to coordinate, we need to contribute with each other, support each other. We are there to support you. So you think about to startup, and from startup to profit making organization. That should be the journey actual. As I right mentioned that the aspirations which generally students have, it is mostly restricted to the name and fame and of the college. Their thinking should also be there, that how they can help to the society with whatever developments they had created so far, whatever projects they had handled, whatever organizations they were associated with, whatever internships they had gone through. They should integrate all these things and see that how they can provide solutions and venture out of it. uh, it is not only the learning part from the student side. As in the morning we have discussed about, we should also think about the upcoming technology which our police requires, how we can involve the faculty members on the when we you are suggesting that faculty should be the team lead, but to make them team lead, to imbibe all those potentials and skill set, as we discussed earlier in the morning, we will be continuing to have one faculty development program to inculcate them or to make them more competent with the required skills. So with this, I would like to thank one and all. And before going that, if you everybody, all the participants, if they have listened carefully, sir has already given us few of the projects. They are very valuable projects. As like that operation in milk tankers, with the help of IoT based platform, you can tackle those. Now this is a good project. Sir has also mentioned about how we can create a bacteria environment. This is the need of our. We are talking about so many things. Now bacteria free environment. Now this again becomes a multidisciplinary where we can take help of the pharmacy stream, where we can of the bioscience streams and the allied areas. Sir has also mentioned about his dream for converting the terrorism to tourism. This is another good initiative, sir. And I would appreciate, sir, that you rightly mentioned about not you are not having the MOUs only with the academic institutions, but you are having the MOUs with the industries also. Now we also need to work in this linkage. The organizations, academic institutions, industries partnering with you all, with the strength, with the youth potential of our students. So with this, I would like to thank one and all. And with you, still, if anybody has any suggestions, I would like to give a last chance to them. Or if I think Shreyesh, if you want to present your vote of thanks, please do it. And then after that, we'll conclude with the session. With the permission of sir. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Shreyesh, please go ahead. You are not audible.
Shreyas, you are not audible. Can you unmute yourself? I think some technical issue. I think someone else can propose vote of thanks. That will be better, because he is not audible. I think probably he has to exit then come back, and probably it will be now asking for password and other things also. So even that will be difficult for him. No issues. Okay, sir. Yeah. I request Gaikwad sir to propose the vote of thanks and conclude the session. Okay. Okay. No issues. Once again, I thank Gupta sir. I thank MHRD Innovation Cell, AICT. I thank Honorable Secretary Chhatrapati Maloji Raje. I thank the entire management of AISSMS. I thank our beloved principal sir, under whose guidance we could achieve these benchmarks. I would like to thank all the participants. I would like to thank the pseudo team, and I am expecting much more from them. Now, sir has suggested us to form the teams and go ahead with the different activities. We are going to form the teams under your consideration, under your leadership, and you need to help us a lot in formation of the teams and selection of the projects and how we are going to move ahead. You need to create a map for that, and we are there to support you. With this, I would like to thank one and all the viewers on the YouTube, the viewers on this platform, the viewer, and I would also like to thank our media team who has created this creative, the radio advertisement, which has been published on broadcasted on several locations for the entire day yesterday till night 12:30. We were just communicating with them. We were communicating with all our student coordinators. So I would like to thank one and all for giving their contributions. And once again, I would like to thank Maithili Sharan Gupta sir for sparing his valuable time and vision. We are definitely going to contribute for this noble cause, sir. Thank you. Thank you. Grateful. Grateful. Thank you. We are going ahead with the MOUs and formation of the teams. Thanks a Thank lot, you. sir. Thank you. Gupta sir, once again, thank you. Gupta sir, once again, thank you. Thank you. Thank you very much. Good job done. We will join hand and we will change the face and fate of our country with our innovative approach, with the energy which our youth is having. So let's say Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat. Thank you so much, sir. Jai Hind, you, Jai sir. Bharat. Thank you so much, sir. Thank you. Thank Thank you you. so much for your precious time. Thanks. With this, I start. We conclude the event. Thanks a lot to all.